यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु. May the well-being of all people be protected by the powerful and mighty leaders with law and justice. May the success be with all community and scholars. May all the world become happy. Good morning, everyone. We are all assembled here for the orientation program, and the theme for the day is practical aspect of advocacy and legal profession. Durat tithyo yasya grahamayanti nirvataha grahastha sa tu vikyaye. He to whose house guests come from near and far happily should be considered a householder. And today, Ayashika Bartwal is delighted to acknowledge the presence of our eminent guest of the day, the owner of Delhi-based law firm Chabra Legal Advisors, Advocate Piyush Chabra sir, on behalf of the Chanakya family. And everyone seated here today would be thrilled to know that our chief speaker for the day too is a part of this thriving family of ours. We welcome you, sir. I would like to say to our guest of the day that, sir, we realize you're often busy with research, drafting, preparing arguments, preparing for meetings with clients, communication with clients, filing of documents, revising file, modifying things, rewriting, renovating, and whatnot. And ultimately, you're sparing your valuable time with all of us, and each one of us is grateful that a man of great, distinct vision is here with us today. To appreciate your dedication to brushing up our knowledge and to honor your kind presence, I would request the Managing Director of our college, Mr. Ravindra Singh Bish sir, to come forward and present a memento to Advocate Piyush Chabra sir. Thank you, sir. I consider it my privilege to introduce the keynote speaker of today's Advocate Piyush Chabra sir. Sir, you are an advocate who passed from Chanakya Law College in 2009. Thereafter, you pursued LLM from National Law University, Jodhpur. Presently, you are the owner of Delhi-based law firm Chabra Legal Advisors. You are empaneled with various prestigious organizations and institutions. Some are Senior Panel Council Common Admission Test, Panel Council National Highway Authority of India, Panel Council District Legal Service Authority, Panel Council Delhi High Court Middle Income Group Legal Aid Society, Panel Council Delhi University, Ex-Panel Council Delhi State Legal Service Authority. You have dealt with high-profile cases like Sujit vs. State in the Supreme Court of India involving 4,200 crore heroin. You have also filed a PIL on child rights before Delhi High Court. We are all pleased to have you here. I would now welcome the man who doesn't need any introduction and is known among all of us for his wisdom and his knowledge. The Managing Director of our college, Mr. Ravindra Singh Bish sir, to take this podium to officially welcome our coveted guest for the day. Good morning, all of you. आज के इस गेस्ट लेक्चर में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2004 में जब हमने इस संस्था की स्थापना की थी, चाणक्य लॉ कॉलेज की, और मुझे याद है उस पीरियड में कि काउंसलिंग वगैरह में हम लोग उसमें थे, और पीयूष छाबड़ा, जैसे कि बताया यासिका ने कि पीयूष छाबड़ा हमारे परिवार के ही स्टूडेंट रहे हैं, आपके सीनियर मोस्ट रहे हैं, और फर्स्ट
बैच के स्टूडेंट हैं। 2009 में आप यहाँ से पास आउट हुए और BA-LLB फर्स्ट 2004 में ने एडमिशन यहाँ पे लिया था। मुझे याद है उस समय भी, जैसे आप लोग का एक न्यू कमर्स जैसे आप लोग हैं, उस समय पीयूष भी उसी तरह से यहाँ पे लिया था एडमिशन। और आज जबकि इस कॉलेज को 18 साल हो गए और पीयूष की भी प्रैक्टिस 10 से 12 साल की इसकी हो चुकी है पीयूष की। और सबसे अच्छी बात यह है, देखिए कि बहुत खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो पीयूष उन्हीं में से हैं जो कि सेल्फ मेड, अपने मैं कहूँगा कि सेल्फ मेड कि इन्होंने, हालांकि इनके पास ऑप्शन था, आप के फादर एडवोकेट सुभाष छाबड़ा जी रुद्रपुर के नामी ग्रामी वकील, आज भी जो जूनियर्स हैं और जो जजेस हैं उनसे सलाह विमर्श करते हैं, कई कानूनी पहलुओं में उनसे सलाह विमर्श करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि आप रुद्रपुर में ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते, लेकिन नहीं, कुछ अलग करना था। यहाँ पे अच्छा करते भी तो एक नाम जुड़ता है कि नहीं भाई पीयूष, क्योंकि फादर आपके यहाँ पे अच्छे वकालत प्रैक्टिस में है, तो एक रहता कि नहीं चलो पीयूष को उसका फायदा मिला, लेकिन कुछ अलग करना था। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली में खुद को स्टैब्लिश किया। और आज जो कि कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कई उसमें पैनल में आप एडवोकेट हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कहते हुए गर्व होता है कि इन्होंने अपनी एक लॉ फर्म स्टैब्लिश की और उसमें कई बच्चों को इन्होंने अपने यहाँ इंटर्न्स में रखा है। और जब भी हमारे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे जो संपर्क में रहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, मैं उनको गाइड भी करता हूँ। मैं पीयूष के पास भेजता हूँ कि आप भाई जाओ, आपको वहाँ पे एक नया कल्चर आपको मिलेगा। कि टेक्नोलॉजी के मामले में राजधानी में, दिल्ली में थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, टेक्नोलॉजी वाइज वहाँ पे ज़्यादा हाईटेक कार्यशैली, ठीक है। राधा कि अगर हम रुद्रपुर की बात करें या हम इंटीरियर की बात करें, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, तो वहाँ पे जो एक वकालत का कार्यशैली है वो अलग है, ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं जितना डेली बेस एडवोकेसी में मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं जो हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग वकालत में जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़े आप लगन। और पीयूष की वही खासियत है कि ये लोग, पीयूष हैं आपके बैच में, देवेश रहे हैं, सागर रहे हैं, ये बच्चे ऐसे थे कि रेगुलर रहे। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीयूष, देवेश, सागर, इन्होंने कॉलेज को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आप लोग की गवर्निंग काउंसिल है, हम कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल है, वो हर साल मूड कोर्ट कंपटीशन कराती है, नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन। तो आप लोगों ने नेशनल लॉ कॉलेज राम मनोहर लोहिया में, लखनऊ में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। और आई थिंक फोर्थ उसमें पोजीशन होल्ड की। इनका जो कंपटीशन किसे भोपाल से हुआ था, नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से आपका कंपटीशन हुआ उसमें, तो फोर्थ रैंक उसने एस्टैब्लिश किया था। तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे काम किया। और सबसे अच्छी बात है कि रेगुलर, कि अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना। आपका साथी क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, अरे लॉ वैसे ही पास हो जाते हैं, मार्केट में 20 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उससे पढ़ के हम पास होंगे, ऐसा नहीं। पास होना अलग चीज है, मैंने आपको हमेशा में कहा, लॉ में पास होना अलग है, पढ़ना अलग है। देन अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आप कल के दिन चाहे वकालत करें, चाहे जुडिशरी में जाएं या फिर किसी और फील्ड में, आप वहां पे एक्सीलेंट ही करो, बशर्ते आपके 5 साल या 3 साल रेगुलर दें। और इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज पीयूष जो है आपको
प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने और जो भी वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू। पीयूष, मोस्ट वेलकम चाणक्य लॉ कॉलेज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैनेजमेंट का थैंकफुल हूँ कि जिस कॉलेज से मैं आज से 12 साल पहले पास आउट हुआ था, आज मैं वहाँ की स्पीकर हूँ। तो मैनेजमेंट को रियली अप्रिसिएशन फॉर दिस। और मैं आज कोई लॉ का टॉपिक आपसे डिस्कस नहीं करना है, उसके लिए टीचर सर आपके साथ हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। डिस्कस ये करेंगे, एक मूवी मैंने देखी थी कुछ 10 साल पहले कि पढ़ाते कैसे हैं, तो पढ़ाते कैसे भी यहाँ पर है, पढ़ते कैसे हैं ये बताऊँ आज। क्योंकि मैं दिल्ली में 11 साल से लॉ फॉर्म रन कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से मेरे पास इंटर्न था। आपके कॉलेज से बहुत बच्चे आए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो द्वारका की है वो मेरे ऑफिस से 1 किलोमीटर है। आईपी यूनिवर्सिटी 2 किलोमीटर है। तो आईपी और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इंटर्न्स मेरे पास आते हैं। ऑल्दो वो कॉलेज नो डाउट हमारे देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं तीनों, लेकिन वहाँ पर भी जो बच्चे आते हैं उनको भी जो मैं गाइडेंस दे पाता हूँ। और जो बच्चे और थोड़ा पार्ट, जैसे सर ने कहा, डिफरेंस होता है दिल्ली के यूनिवर्सिटी, दिल्ली में और रुद्रपुरिया और यूपी के कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं, डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस क्यों है, मेरा सोल पर्पस ही आज आने का ये था कि उस डिफरेंस को हम कितना कम कर सकते हैं। और मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। वो कॉमन मिस्टेक को आज कितनी स्ट्रेंथ होगी सर यहाँ पर? आज 120 स्टूडेंट्स आप लोग सुनोगे। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कहेंगे अरे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसे होंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिसने मेरी बात को सीरियसली ले लिया वो सक्सेसफुल लॉयर बनेगा। आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग टुडे। जिसने भी मुझे आज सीरियसली सुन लिया वो एक सक्सेसफुल लॉयर बनेगा, जज बनेगा, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ वो मैंने खुद को अप्लाई किया है। मेरे फादर यहाँ लॉयर थे, मेरे लिए बहुत ईजी था, पापा के साथ जुड़ जाता, छापड़ साहब के लड़के का टैग लेके मैं इस टैग को जिंदगी भर चलाते रहते। मैंने सोचा, मैं जब कॉलेज से गया तो बहुत सारे बच्चे थे जो कॉलेज कभी नहीं आए। मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं आए। मैं रुद्रपुर गया, पापा के साथ सारे लाइन लगा खड़े हुए थे। मैंने कहा डिफरेंस क्या है? मैं 5 साल तक मेहनत करता रहा और ये बच्चे तो कभी आए नहीं कॉलेज, इनके साथ मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा और वही सब फिर डिफरेंस का आया। तो मैंने ये यूज किया कि मैं दिल्ली जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं डिफरेंस देखना चाहता हूँ क्या है। अगर दिल्ली और रुद्रपुर सेम हुआ तो मैं रुद्रपुर आ जाऊंगा, पापा यहाँ पर है, या फिर कुछ बेटर हुआ तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, या फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तभी मैं वापस आ जाऊंगा। बट मैं ट्राई करूंगा। मैं अपने आप को उन से अलग करना चाहता हूँ जिनके जैसा मैं कॉलेज में नहीं था। तो सबसे पहले ये डिफरेंस, मैं खुश हूँ कि आज 120 लोग यहाँ पर हैं। मुझे नहीं पता इस कॉलेज की स्ट्रेंथ आज क्या है, बट अगर आज कॉलेज में ये मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि कोई बोलने आने वाला है, कोई भी एटलीस्ट मैं कहता हूँ, मैं आऊँ, कोई जज आए या कोई भी आए, एटलीस्ट आप लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे तो कुछ तो मिलेगा। 1 घंटा बोलेंगे, 2 मिनट की तो फायदा हुआ। मैं सेकंड 58 मिनट हटा दो, 58 मिनट बेकार बोला, 2 मिनट का फायदा तो लेने आ सकते हैं अपना 1 घंटा देके। तो जो बच्चे आए हैं सबसे पहले उनको थैंकफुल कि आए हैं और आप लोग सुनेंगे। तो स्टार्ट में सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कुछ, फिर हम डिस्कस कर पाएंगे कि हम सही जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सही भी जा रहे होंगे। सर ने मुझे आज बताया कोई रोहित पांडे इसी इंस्टीट्यूट से जज बन गए। तो सबसे पहले कि जो इंस्टीट्यूट होता है वो बच्चों से होता है, उनके स्टूडेंट से होता है। इंस्टीट्यूट से बच्चे नहीं है, ठीक है। 10 बच्चे यहाँ पर जजेस बन जाएंगे, अच्छे लॉयर्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली चाणक्य लॉ कॉलेज का नाम हो जाएगा। मैं चाणक्य लॉ कॉलेज जो फर्स्ट बैच स्टूडेंट जब वो एस्टैब्लिश हुआ था वहां से पढ़ के दिल्ली जाता हूँ। मेरे पास आज 6 फुल टाइम, निर्णय प्रताप सिंह आए थे मेरे पास, तो वो सब जानते हो, आते रहते हैं मेरे पास इस वक्त 6 फुल टाइम लॉयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम माय सपोर्टिंग स्टाफ, और सारे के सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। और इससे पहले भी जितने 5-10 लोग आए गए 11 सालों में सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। मैं चाणक्य लॉ कॉलेज से पढ़ के जाता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की हायरिंग करता हूँ। तो वो डिफरेंस कैसे बनेगा? पढ़ना करना क्या है? अगर हम कॉलेज के टाइप के, मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये बताने में कि सर मैं गाजियाबाद से पढ़ रहा हूँ। इतना मेरे पास अनीश भारती, तो ही वाज ऑलवेज हेजिटेंट, कहाँ से पढ़े हो, गोलमोल सा आंसर देना शुरू कर देगा। एक दिन मैंने उसे बिठाया, कैंपस में बुलाया, मैंने क्या हुआ,
ये सर बड़ी शर्म आती है सर गाजियाबाद से बताने में। सर आपके यहाँ सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी आईपी के इंटर्न्स हैं या बच्चे हैं या जूनियर्स हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैंने कहा शर्म क्यों आती है? मैंने कहा बुक तेरी सेम है, बेरेक्ट सेम है, ऐसा सेम है, पढ़ाई भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, चेक कर ले अगर गलत मैं कह रहा हूँ, सिलेबस भी सेम है। हाँ जी सर सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है फिर? चुप हो गया, मैंने डिफरेंस दिया कि तू पढ़ता नहीं है, तू इस कॉम्प्लेक्स में मरे जा रहा है, तू पढ़ ले इन सारे एक्ट्स को पढ़ ले और फिर मैं तेरे को बैठाऊंगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ, तुम इंटरेक्ट करना, डिस्कशन करना, तू जीत जाएगा तो छोटा तेरे से व्यक्ति हो जाएगा। तो तेरा जो फोकस है वो लूज है। तो दो तरीके से फोकस लूज है, या तो बच्चे सुनी सुनाई बातों पे, जो सर अभी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सुनी सुनी बताओ बातों में ही अटके हुए हैं। आपको बुक मिली है, आप उस बुक को पढ़ें, डीप पढ़ें, टेक्निकली लेवल पे आके पढ़ें। 20 क्वेश्चन कितने बच्चे पढ़ते हैं हाथ में? सच सच भागो आज 20 क्वेश्चंस पेपर में 20 क्वेश्चन मॉड्यूल आता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना, नाइट में चल रहा है। वो 20 क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसमें से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। पेरेंट कितने लोग पढ़ते हैं? बच्चे वैसे इंटेलिजेंट होते हैं। कौन बताएगा मुझे पेरेंट और कमेंट्री में डिफरेंस क्या है? बताओ, जितने हाथ उठाया तुमने तो बताओ। कौन कौन पढ़ता है पेरेंट? पेरेंट कौन कौन पढ़ता है? आप मुझे बताओ पेरेंट और बुक में डिफरेंस क्या है? आप जो आपकी बुक है और पेरेंट है, क्या डिफरेंस है? सर पेरेंट में प्रोविजंस होते हैं और उनकी डेफिनेशंस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, हमें वर्ड समझने के लिए बुक ही हम चाहिए होती है, एक्सप्लेनेशन के लिए हम बुक ही हो जाते हैं। कोई बता सकता है पेरेंट और बुक में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। सब पढ़ते हो बताओ, अब सबने हाथ उठाया था। बेयर एक्ट, अच्छा चलो मेरे पास दो बेयर एक्ट है, एक यूनिवर्सल का एक प्रोफेशनल का, एक ये सबने अभी दिया सीएलए का। क्या डिफरेंस होगा इस बेयर एक्ट में तीनों में? कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होगा? हाँ। और जो समझाना चाह रहा है तीनों में उसका समझाने का तरीका अलग होगा। नहीं बेयर एक्ट में सेक्शन 378 लिखा है, उसके बाद डेफिनेशन में क्या फर्क होगा? सर वो जो है वो एग्जैक्ट जो वहाँ से मतलब कि जो एग्जैक्टली गिवन है वो यूनिवर्सल है और जो बुक्स है वो यूनिवर्सल नहीं है। मतलब नहीं मैं तीनों बेयर एक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बेयर एक्ट, यूनिवर्सल बेयर एक्ट एंड सीएलए बेयर एक्ट। इन तीनों की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? कितने लोग कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं होगा? सब प्राइस डिफरेंस हो, प्राइस डिफरेंस नहीं, लैंग्वेज डिफरेंस कितने लोग कह रहे हैं कि लैंग्वेज में डिफरेंस होगा? कितने लोग कह रहे हैं लैंग्वेज का डिफरेंस होगा? चलो इतने लोग हाथ उठाओ। लैंग्वेज का जो लोग कह रहे हैं लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, नहीं होगा, आपने बिल्कुल ठीक है। तो बेयर एक्ट वो लॉ है जो हमारी पार्लियामेंट ने सेट करके हमें दे दिया है और वो अलग अलग कंपनियां उसको छाप रही हैं। उसके नीचे जो कई बार एग्जांपल्स होते हैं वो एट टाइम, वो भी इलस्ट्रेशन नहीं और कुछ अगर उसको समझाने के लिए वो अलग होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपका आंसर ठीक है, ठीक है ना? तो कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें, बैठ जाओ आप। तो पॉइंट ये है कि 20 क्वेश्चन बात हो रही थी, 20 क्वेश्चन छोड़ने की अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते, एक दो ही हाथ उठे थे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जिनके पास है आज जाके हर जगह पढ़ देना, ठीक है ना? अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 5 साल बाद टेबल की दूसरी साइड आएंगे, एक क्लाइंट आएगा, आपको अपनी एक रैंडम सिचुएशन बता देगा कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, या मैंने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, मैंने नहीं कर दिया, मैं फंस गया, और आपको उसको एड्रेस करना है, आंसर करना है। वो तभी हो पाएगा जब आपको बहुत ज्यादा थॉरो नॉलेज होगी लॉ की। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, एक सिचुएशन आपके आई है, उसकी कितनी सारी चीजें उसमें रिवॉल्व कर रही हैं, कितने सारे एक्ट्स उससे रिलेटेड हैं उस सिचुएशन से, वो तभी बताऊंगा जब आपने वो एक्ट्स को पढ़ा होगा। मैं उसका भी एक फेलियर एग्जांपल दूंगा अभी आपको कि लोग कैसे ड्राफ्टिंग कर देते हैं और वो फिर बाद में केस आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप आज नोट डाउन कर लो, सब अपना अपना नोट करो। आज हमने 20 क्वेश्चन फाड़ देने का है, और जो नहीं फाड़ेगा आज 20 क्वेश्चन उसको ये डिस्कशन से अभी बात करते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। जल्दी जल्दी मेक इट फास्ट, हो गया सब?
बिल्कुल आप मान लो, मैंने अभी क्या कहा था स्टार्ट करने पहले, जो लोग नहीं मानेंगे ना वो इस सेशन में सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल फाड़ देना है, एटलीस्ट 120 बच्चे, ये जो बच्चे आ जाए वो फाड़ दें, बाकी जो 300-400 नहीं आए, स्ट्रेंथ कितनी है सर अभी इस कॉलेज? हाँ, तो अगर 500 बच्चे नहीं आए उनको छोड़ देते हैं। आज हम इन 120 लोगों को अच्छा लॉयर और अच्छा जज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं कुछ कारों से नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे बच्चे हैं, जितने मेरे मैं पिक कर पाऊंगा उनसे पूछता हूँ। वाई लॉ? कोई मुझे कन्विंसिंग आंसर दे, कुछ 5 से 10 बच्चे, आप बताओ जब आपने लॉ क्यों चूज किया? मैंने मतलब पहले ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद बीएड किया, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आई लाइफ में कि मुझे लॉ चूज करनी पड़ी। नहीं, लॉ वो सिचुएशन ठीक है, लॉ करके मिलो। लॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लॉ से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, मुझे स्टेज फेस करने का कॉन्फिडेंस आया, और मैं मतलब लाइफ में हेल्प करना चाहती हूँ जो नीडी है, जिनको लॉ से फायदा हो उनकी। ठीक है, और प्रोफेशनल इनकम भी करनी है। हाँ, प्रोफेशनल अल्टीमेटली तो यही पर्पस है, ठीक है? वी आर इन पब्लिक लाइफ, नो डाउट में मदद करनी चाहिए, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता हूँ, बट अल्टीमेटली वी नीड टू अर्न आल्सो फ्रॉम दिस प्रोफेशन, ठीक है? आप लोग कर रहे हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती थी, यूपीएससी में अप्लाई करना चाहती थी, पर मेरी मॉम थी, वो कहती थी कि आपको ऐसा करना है जिससे आपकी हेल्प भी हो प्रोफेशन में, जैसे मेरी। आप लोग तो कर रहे हो, आप ऊपर बैठे हाँ नहीं ये So actually I am doing law because of I have to join the political party, so that's why I am doing law to know all the acts and that I cannot do mistakes in further, that when I have to take steps for my political party. ओके, और कौन बताएगा? आप लोग तो कर रहे हो, आप जिस पहले आंसर दिया था। To fulfill my dream, sir. ड्रीम, I want to become a Chief Justice of India. वेरी गुड, ठीक है? आप क्यों कर रहे हो? सर लॉ सर मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हाँ, कोई इशू नहीं है, सर। सर लॉ मैंने ज़्यादातर कानून जानने के लिए और कैसे लोग वर्क करते हैं, अपनी मतलब गलत काम क्या होते हैं ये सब जानने के लिए। आपने लॉ क्यों किया? 1 2 3 4 सेकंड, 4 सेकंड आपके पीछे, आपने क्यों कर रहे हो आप? सर फैमिली हाँ, फैमिली प्रेशर। और कौन बताना चाहेगा लॉ क्यों कर रहे हैं? कौन बताना चाहता है मुझे लॉ करके? अपने आप करो। आपस में बात नहीं करेंगे? हीरो आप सर मज़ा आता है। मजा आता है? किसी को पैसे नहीं कमाने? आप बताओ। पैसा बहुत पैसे मिलते हैं, सब कुछ चाहिए होता है, पैसे डालने, आप हेल्प भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे तो आप मतलब अवेयर हो जाएंगे, आप ना आपको कोई डरा सकता है, फिर मतलब एक होता है ना, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप सिक्योर कर सकते हैं। आप बताओ। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो सब्जेक्ट है, और हमारे जैसे बचपन से स्टार्ट हो जाता सब कुछ, एट रेगुलर रूटीन भी हमारे लाइफ में भी लॉ ही चलता है, तो इंटरेस्ट है तो भी करते आप बताओ। 1 3 सेकंड, जुडिशरी बनाने के लिए। कौन सा ईयर है? अभी बीए में ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया? कॉन्टैक्ट चल रहा है। चल रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पूछना थोड़ी देर में, ठीक है? ऑनेस्टली ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके आंसर मुझे कन्विंस नहीं किया या कर लिया, वो जजमेंट नहीं करना है मुझे, मैं उसके लिए कुछ नहीं करता। मैं जब 11 साल पहले यहाँ बैठा था तो मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चलता रहता था। मैं इनिशियली किसी और प्रोफेशन में था, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लॉ में आने से पहले मेरे फादर लॉयर थे, बट मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे इंटरेस्टेड क्या नहीं था, मुझे वो अवेयरनेस ही नहीं थी कि मुझे लॉ करना चाहिए। बट जब मैंने लॉ की बुक उठा के पढ़ना शुरू
मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये समझ में आ गया था। मेरा सिंपल ये था कि मेरे को प्रोफेशन में जाना है, कोई प्रोफेशन ऐसा जहाँ मेरा इंटरेस्ट हो। अल्टीमेटली हम सबको एक काम करना है, जो फेयर आंसर ये है कि हम सबको कोई काम करना है, प्रोफेशन चूज करना है अपनी लाइफ में, चाहे हम इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हो सकता है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ भी हो। बट देन 3 इडियट्स में मूवी में ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं थी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है मुझे नहीं पता कितने, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल थी, जिस काम में मज़ा आएगा अगर वो करोगे ना तो बहुत सक्सेसफुल होगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, ये आपको अपने आप से पूछना है। और जो आंसर आपने दिए कि आप खुद उससे कन्विंस हो, क्या सिर्फ जो भी आपने आंसर दिया वो आंसर आपको इतना मोटिवेट कर रहा है कि आप पूरा दिन पढ़ सकते हो। आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया है जिसमें आपको पूरा दिन पढ़ना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस ये डिस्कशन ऐसे खत्म हो जाएगा, मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कहीं को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई टॉपिक आएगा और फिर पढ़ाएंगे। तो पॉइंट ये कि आप अपने आंसर से कन्विंस हैं, सब लोग कन्विंस हो अपने आंसर से जितना दिया है। क्या ये कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपको पूरा दिन पढ़ने के लिए, कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? 10 घंटे पढ़ते हो दिन में? कितने लोग 10 घंटे पढ़ते हैं? ना कॉलेज आज के अलावा 3-4 घंटे की होती है क्लास यहाँ पर। चलो मैं 10 नहीं कहता, कॉलेज आपके पास 6 घंटा, 1 घंटा 6-8 पढ़ते हो आप? बहुत अच्छा है। तो एटलीस्ट हमें इतना पढ़ना चाहिए। अभी इससे भी ज्यादा अभी मैं आगे भी आता हूँ, उसमें जो एक मिथ है प्रोफेशन में, वो रुद्रपुर में भी थी, वो दिल्ली में भी थी, तो वो मिथ को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि क्या सिंसियरली आप वर्क कर रहे हो उसमें, वही जो हमने पढ़ने से रिलेटेड का, वो एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे 6 घंटा पढ़ने की हमने बात की। आपके दोस्त होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड, जिनके पास मेडिकल ऑप्ट किया होगा, इंजीनियरिंग ऑप्ट की होगी उन्होंने, और CA, MBA, BBA। वो बच्चे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया लाइफ में, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बहुत उनकी एंट्रेंस से लेके उनकी पूरी पढ़ाई तक बहुत मुश्किल है। एक बात एडमिट करते हैं कि लॉ के एग्जाम को पास करना बहुत ईजी है। हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई नहीं है इसको पास कराने में। आप इजीली एंटर करके, ऐसे भी बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन पास हो जाते हैं, कुछ तो यहाँ भी होंगे, आई एम श्योर। पूरा साल नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ लिया 2-4 घंटा के एग्जाम वाले दिन, कुछ भी लिखा है 45% मार्क्स आ गए। तो वो एक हैबिट छोड़ना है, पूरी की पूरी बुक पढ़नी है जो आपके सिलेबस में ना हो वो भी। क्योंकि जब आप प्रोफेशन में एंटर करेंगे, क्लाइंट की प्रॉब्लम आपके पढ़ा हुआ एरिया देख के या आपके कॉलेज सिलेबस के हिसाब से नहीं है। मैं आज भी 11 साल बाद ऐसी चीजें फेस करता हूँ कि मुझे कई बार फ्रेंड से टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारी सिचुएशन का आंसर तो है ही नहीं ना। इट्स अ प्रोसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों लॉयर के काम आती है? क्योंकक्योंकि स्पैन ऑफ 20 इयर्स उसने पढ़ सब कुछ देख लिया होता है या बहुत कुछ देख लिया होता है। यंग लॉयर होता है, कोई सिचुएशन डील ही नहीं की होती। तो उससे पॉइंट ये है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हम लेके जाए ना कि एक कॉमन डे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें। तो उस जितना लॉ एटलीस्ट आपका है उससे ज्यादा, जितनी आपके पास बुक है आप उतनी बुक एटलीस्ट पढ़ लें, ठीक है? पहली चीज। एक साथ आपको डिस्कस कर लूं और मैंने लिख ली थी ये बात। मेरे को मेरे डैड ने भी ऐसा कभी बहुत ज्यादा मतलब मैं क्योंकि पहले मैंने जैसे बताया मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा एक सिंसियर एफर्ट था कि यहाँ लोग 20 क्वेश्चन से पढ़ रहे थे, उस वक्त भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि यार ये पढ़ने का अप्रोच है। जेसीएस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में अगर कोई जानता है तो मैं जेसीएस से पास आउट था, नो डाउट वहाँ पर एक टफ एटमॉस्फेयर हमेशा रहा था। तो मैं जब कॉलेज में आया तो एक एटीट्यूड मैटर करता था। मैंने कहा यार मैं जेसीएस से पढ़ के आया हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, टफ थी पढ़ाई, बड़ी टफ थी, जेसीएस में पास होना बड़ा मुश्किल होता था, बोर्ड्स को छोड़ दे तो बोर्ड्स का तो क्राइटेरिया सबके लिए कॉमन था। अब मैं एकदम से आके एकदम 20 क्वेश्चन से पढ़ना शुरू कर दूं, साइंस का मैं स्टूडेंट था तो मुझे वो इजी लग रहा था। और मेरी जिंदगी में मेरा एक एटीट्यूड है भाई, जो चीज इजी है ना तो वो तो सही रास्ता तो नहीं है, सक्सेस का रास्ता तो टफ ही होएगा। तो मैंने 20 क्वेश्चन, हालांकि मेरे डैड ने मुझे कभी गाइड नहीं किया था, मैंने मुझे कभी डिस्कस भी नहीं किया शायद मैंने, लेकिन मैंने 20 क्वेश्चन को अपने आप ही नहीं पढ़ा कभी, क्योंकि मुझे लगने लगा कि सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन पढ़ने की हम बात कर चुके हैं, पूरी बुक पढ़ने की हम बात कर चुके हैं, ठीक है? ये दो चीजें आपने अभी तक नोट कर ली होंगी, ठीक है? परफेक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। मेजर ध्यानचंद का नाम सुना किसने? कौन? हॉकी के चाचा। मेजर ध्यानचंद की परफेक्शन आई थी, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर
सुन लिया आपने, सुना होगा भी सर ओलंपिक के मैच में हाफ टाइम हो गया और कोई गोल नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा भाई ध्यानचंद ये क्या हो गया, आज क्या हुआ, मतलब गोल नहीं हो रहा आपसे। तो उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था ध्यानचंद जी का कि उन्होंने कहा गोल पोस्ट में गड़बड़ है कुछ, जो मुझसे गोल नहीं हो पा रहा, मुझसे मैं तो सही हूँ, गोल पोस्ट में गड़बड़ है, ओलंपिक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, ऐसा मजाक नहीं है, नहीं गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है, आई एम श्योर। तो ब्रेक किया गया और उस गोल पोस्ट को नापा गया, 2 फुट छोटा निकला। तो आपका लॉयर का जो कन्विक्शन है किसी भी लॉ को क्लाइंट को बताने के लिए, वो इतना ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इस लेवल की आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए। कुछ सिचुएशन में अभी शायद कोशिश करूंगा कि आपसे डिस्कस करूं, जो लोग 5th ईयर स्टूडेंट हुए, कितने बच्चे 5th ईयर इस वक्त यहाँ पर जो बैठे, और कौन है 5th ईयर, मतलब 10th सेमेस्टर कौन है, 10th या फिर 6th सेमेस्टर, हाँ 9th वाले में चलेंगे, 9th सेमेस्टर का कौन कौन है आप, सीनियर बच्चे कम है सर, उनका होना ज्यादा जरूरी था शायद, क्योंकि आपको अब आप 6 महीने बाद दूसरी साइड आने वाले हैं। तो हम लोग कितना रेडी हैं, चीफ जस्टिस साहब कितना रेडी हैं अपने क्लाइंट्स को प्रॉब्लम को डील करने के लिए। जज बनना है आपको फिर? जी सर। प्रिपेयर कर दिया, जुडिशरी के लिए शुरू कर दिया? सर अभी टाइम दे रहा हूँ क्योंकि बीच में लॉकडाउन में पढ़ाई हो पाई थी, तो 2 साल एलएलएम सोच के मैंने डिफेंस साइड पर रखा है। एकेडमिक्स में अगर नहीं जाना तो एलएलएम को मत सोचना। जी सर, सोच नहीं रखा सर, 2 साल देने के लिए बस घर से घर पे पढ़ाई हो पाती। और आपसे भी मैं वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट पूछूंगा, और मैं सबसे पूछूंगा, और इसलिए नहीं कि मुझे किसका टेस्ट लेना है, टेस्ट तो लेना नहीं है, अभी टेस्ट आप लोगों को एग्जाम स्कूल में देना है और फिर अपने क्लाइंट को देना है और कोर्ट को भी देना है। दिल्ली में एक कल्चर है कि अगर आपकी लीगल नॉलेज अच्छी प्रिपेयर नहीं है, मैंने रुद्रपुर में नहीं देखा, मैं रुद्रपुर के केसेस भी करता हूँ, नैनीताल हाईकोर्ट भी करता हूँ, यहाँ मैंने देखा नहीं, लेकिन दिल्ली में अगर आपका लॉ बहुत साउंड नहीं है तो जज आपको कोर्ट में ठोक देते हैं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंट के सामने, तो है ही है जो वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट आपसे भी पूछूंगा, उसका डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ, और मैं क्यों जान रहा हूँ कि टेक्निकल क्या है, व्हाट टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या है ये होता क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। कितने लोगों ने ये एक स्टेटमेंट सुनी है कि कोर्ट अलग है और लॉ की पढ़ाई अलग है? यस सर। कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है? मैंने तो सुना था। और उस मिथ में ना, जो ये बंदा, उसका नंबर डिलीट कर दो जिसने बोला, ठीक है, ये मिथ में हम आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है, कोर्ट अलग है और लॉ की पढ़ाई अलग है, यही चल रहा है, और ये बहुत ज्यादा चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है, 10 या जब मैं 10 से देख रहा हूँ 20 से चल रहा होगा, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है, एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है, और बहुत कम है जो लॉ कॉलेज में, ये फर्क अलग कैसे हो गया? अगर आप इफ यू आस्क मी, मैं कहूँगा कम है, ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। एक एग्जांपल दूंगा मैं, 2012 में 10 का मेरा एनरोलमेंट है, 2010 आई गॉट एनरोल्ड विद दिल्ली बार काउंसिल। 12 में मेरे पास एक केस आया, एक टॉपिक है हमारे में, प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इफ अ रिलेशनशिप इज एंटर्ड इनटू विद द गर्ल अंडर अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड लेटर द मैरिज इज डिनाइड, दैट इट कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ रेप। हाउ? कोई बता सकता है क्यों? अगर किसी लड़की ने शादी का वादा किया, रिलेशनशिप में एंटर किया और फिर शादी नहीं करी, देन इट्स अ रेप। क्यों? कोई बता सकता है? कहां से इंटरप्रिटेशन होती? जजमेंट नहीं पूछा, उदय प्रदेश स्टेट दिलीप कुमार तो दिन जजमेंट है। ये सेक्शन 90 जो है हमारा इंडियन पीनल कोड, उसमें कंसेंट की डेफिनेशन दी है। तो कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इज नो कंसेंट। तो कोर्ट ने कह दिया जजमेंट में कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, हालांकि मेरा उसमें एक आर्टिकल है, आई क्रिटिसाइज, मैं दूसरी तरफ करता हूँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि अधूरी नॉलेज से आपने डिनाई कर दिया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की चीज ये भी नहीं है कि आप हमेशा मान रहे हो। अगर लॉयर हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रेसिडेंट्स को मान ही दे पूरी तरह से, ऑल्दो बहुत तरह तक का लॉ है, 136 है जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर उसको चेंज भी होता है, लॉ इंटरप्रिटेशन चेंज भी होती है, जजमेंट रिवर्स भी होती है। तो ये इंटरप्रिटेशन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। उसमें मेरा एक आर्टिकल है, पब्लिश है, आपने चाणक्य लॉ कॉलेज की साइट पे भी है, वो आर्टिकल मैंने पब्लिश कराया था। लेकिन इस तरीके का लॉ हमने सेट कर रखा है। हम डिस्कस क्या कर रहे थे टॉपिक में, वो निकल गए। व्हाट वी वर डिस्कसिंग इससे पहले मिथ सेक्शन 9 मिथ वाला। हाँ, तो एक 2012 में केस आया मेरे पास, somebody called me randomly and मेरे भाई का ऐसा केस हो गया है and we need to pick your bail and then we need to contest the matter। तो मुझे उससे एंगेज कर लिया, हालांकि मैंने तो ऐसा केस कभी पढ़ा भी नहीं था अभी तक,
और थोड़ा थोड़ा जैसे आज मैंने आपको बता दिया, मैंने कोई किसी ने बताया होगा, मैंने आज तक यही किया 11 साल में। मैंने कभी किसी केस को ना नहीं किया और मेरा डिससेटिस्फैक्शन रेट 1-2% से ज़्यादा नहीं है। 100% किसी का नहीं हो सकता। अगर मेरे पास आज तक 1000 क्लाइंट आए हैं तो 2% आप लगा लो जो डिससेटिस्फाइड हुए होंगे, वो भी अपनी किसी गलती से हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने कभी किसी केस का खराब नहीं किया, क्लाइंट का कोई केस खराब नहीं किया। पहला मुझसे मेरे इंटर्न आते हैं, सवाल पूछते हैं, सर प्रैक्टिस चलो सारी बात अपनी है, पढ़ाई भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्लाइंट कैसे बनेंगे? ये मैं बता देता हूँ आज आपको, ये जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइव करने के लिए ना सिस्टम में रहना जरूरी है। अटल जी कहते थे ना, कॉलेशन करके गवर्नमेंट में आएंगे तब बनेंगे, तब तो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आइडियाज को, तो पहले आना पर जरूरी है ना। तो आप अगर प्रोफेशन में रह पाएंगे, 2-4 साल इनकम नहीं होगी, जितने भी आप मॉरल वैल्यूज की भी बात कर रहे थे, सोसाइटी सर्व करेंगे और ये करेंगे, कोई सर्व नहीं करेगा। क्या मेरी कमाई नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? ऑफिस का खर्चा, रेंट, जूनियर की फीस, स्टाफ, स्टेनोग्राफर का सैलरी नहीं होगा। सोशल सर्विस एक लेवल तक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो मेरे पास केस आया, मैंने उस केस को अभी तक बिल्कुल भी ऐसा केस हैंडल नहीं किया था और इतना डीप पढ़ा भी नहीं था। रात को कुछ 8 बजे मेरे पास कॉल आई थी, अगले दिन मुझे क्लाइंट से मिलना था और डेफिनेटली मुझे सारा पता होना चाहिए। फिर प्रॉमिस ऑफ मैरिज में क्या लॉ इन्वॉल्व है, कितने जजमेंट रिवर्स हुए, कितने फेवर हुए। मैंने उस रात में 10 से 12 जजमेंट पढ़ दिए थे। एक जजमेंट 30 पेज का होता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी होता है। नॉर्मली इस केस में लगभग 20 से 30 पेज है, थोड़ा लेंदी था जजमेंट। मैंने उस रात में 30 मतलब लगभग 10-12 जजमेंट्स पढ़े और टोटल मैंने 30 से 40 जजमेंट इस टॉपिक पढ़े थे, जिसकी कंपाइलेशन आज भी मेरे पास है। मैंने रात में सारे जजमेंट पढ़े, अगले दिन क्लाइंट मीटिंग की मैंने। मुझे तब तक बहुत पता चल चुका था इसके बारे में। तो बीच में कुछ एपिसोड्स हुए थे, वो कभी जब आप इंटर्नशिप या जूनियरशिप के लिए आओगे तब बताऊंगा। फाइनली हमें ब्रेक मिली नहीं मिली, कुछ ऐसा हुआ, इंटरिम हुई थी, फिर डिसमिस हो गई। फाइनली ये 2013 आ गया, 1 साल निकल गया। तब तक मैंने लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया था 3 साल में। लोग कहते हैं 5 साल तो सीखने में निकल जाएंगे, उसमें उसके ऊपर भी आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तीसरा साल रेप केस में क्रॉस एग्जामिनेशन अपने आप में चैलेंजिंग है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना प्रैक्टिस करना है, मेरे लिए पहला केस है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी ने मुझे अपनी जिंदगी दे दी कि सर मेरे भाई का केस कंटेस्ट करो, मैं हार जाता हूँ करके, अपनी गलती से लीगल मेरिट पे हार गया, कोई बात नहीं, लॉ यही कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी किसी गलती से अगर क्लाइंट हार जाए, उसको 10 साल की सजा हो जाए, तो डेफिनेटली मेरे लिए बड़ा सेटबैक होगा। और मैं जिस तरीके का मैं इमोशनल और प्रोफेशनल हूँ, मेरे को तो शायद कई रातें नींद नहीं आती। तो मैंने अपना 100% दिया। जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ लड़की का 1 साल बाद, तब मैंने लगभग 30 से 35 जजमेंट पढ़ लिए थे इस टॉपिक पे। उदेश वर्सेस स्टेट जो शायद पहला ही जजमेंट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं कहता, वो आपको चेक करना है। उदेश वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। वो कहता है इफ रिलेशनशिप इज आउट ऑफ लव देन इट इज नॉट आउट ऑफ प्रॉमिस। बहुत क्लियर कट लैंग्वेज है उसमें। या तो रिलेशनशिप प्रॉमिस में होगा, और प्रॉमिस में होगा तो मिसकंसेप्शन और फैक्ट की डेफिनेशन हम आगे उठाएंगे। अगर इस रिलेशनशिप लव है, इट इज आउट ऑफ लव, देन इट इज नॉट आउट ऑफ प्रॉमिस। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लड़की आई मेरे सामने, मैंने उससे पूछा आप जो भी नाम था मिस्टर एक्स से बहुत प्यार करती हूँ? डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, सही गलत मॉरली जज नहीं करना है मेरे को, ठीक है ना। कि अगर केस था आपने जितवा दिया, ठीक है ना, आपका काम। अगर आपने क्लाइंट ले लिया, एडवोकेट एक्स से कहता है आपको जीतना है। और इस केस में तो मेरा कन्विक्शन भी हुआ था कि मुझे लगता है ये लॉ ही गलत है, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोग डिसेंट करते हो मुझसे, कुछ लोग फेवर मेरे को कंसेंट दे रहे होंगे कि हाँ सही कह रहे हो, लेकिन उस पर लीगल बात कर रहा हूँ। लीगल में भी मैं इस पर डिस्कशन के लिए रेडी हूँ किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज से कि ये लॉ आपने गलत सेट किया हुआ है। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि आप याद करते हैं इससे? डेफिनेटली लड़की का अंदर हाँ समझ से होता है, कोई भी लड़की ना नहीं गई, आप इतने समझदार हैं। तो कह रही हाँ बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा जो रिलेशनशिप आपके बीच में बने, वो रिलेशनशिप भी बहुत प्यार आपके बिकॉज ऑफ योर लव, डेफिनेटली उसका आंसर हाँ ही आना था। उसने यस कहा। इस तरीके के कंटिन्यूटी में 5-7 सवाल मैंने उससे पूछ लिए। हमने बेल अप्लाई की हाई कोर्ट में, मुक्ता गुप्ता वाज जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट। हमने कहा मैम जो भी आर्ग्यू किया, तो जज ने हमारी फाइल को उठाया और ऐसे उड़ा दिया। मतलब ये एक चीज होती है कि अगर आपकी फाइल ऐसे उड़ गई तो आपको भी मुश्किल मिलती है। कह रही है मिस्टर छाबड़ा व्हाट इज दिस, कभी आप शादी का वादा करते हो, बीच में शादी भी करवा दीजिए, कभी आप शादी करवा देते हो, कभी फिर ये छोड़ देता है, कभी प्रॉमिस करके छोड़ देते हो, क्या नॉनसेंस। फाइल उठा के हमारी फेंक दी। मैंने कहा मैम हम यहाँ पर आपके साथ ना प्योरली मेरिट्स पे इस बेल को फाइल किया है। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिन्ड द लेडी and she categorically says that the relationship is out of love, it was not out of promise. And today's versus state 2004 Supreme Court of India is very clear on the point, relationship या तो promise से है या love से है। और उसी फाइल को, जिस फैक्ट को जज अपने आगे फेंक चुकी थी, उठा के बेल दी थी जज ने, वो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की साइड पे आ गई, तो बेल हमें मिली थी।
तो पॉइंट ये है कि अलग नहीं, आपको सब कुछ वही है जो बुक्स में लिखा है, जो बुक्स में लिखा है वो ही आपको सुप्रीम कोर्ट और अच्छी वकालत जो कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स की भी वो प्रैक्टिस आपको काम आएगी। जो रेडीमेड वकालत हो रही है ना, बहुत जगह हो रही है, ये एडमिट करेंगे आज, क्योंकि मैं दिल्ली में भी देख रहा था, नहीं कि दिल्ली बड़ा दूध में धुल गया, वहाँ भी बहुत सारे लॉयर हैं। मेरे साथ आज भी ऐसे लॉयर हैं जो दिल्ली कॉलेजेस से पढ़े हैं, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई और हो, और वो आज ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ मेरे से आगे नहीं है, बल्कि उनके किसी मैटर्स में मैं आर्ग्यू करता हूँ, क्रॉस एग्जामिन करता हूँ। और मैं चाणक्य लॉ कॉलेज से रुद्रपुर से पढ़ के गया था, मैंने जो आपको बताया था, इंस्टीट्यूट जो बनेगा आप लोगों से बनेगा। आप लोग कितने डेडिकेटेड हैं, उससे आपके ऊपर तो कंधे पे इंस्टीट्यूट का भार भी है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट को भी आगे ले जाना है। और मैं दोबारा भी आऊँगा और उस दिन मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा किसी भी रैंडम टॉपिक से। 1 साल बाद आऊँगा, आज के बाद 1 साल बाद हम लोग फिर मिलेंगे। कुछ बच्चे जा चुके होंगे बट जो होंगे उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये कि लीगली अपने केस को पढ़ना, जिसे हम रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सिर्फ बुक पढ़ ली, एग्जाम में 65% मार्क्स आ गए, मेरे 55% मार्क्स है, सर विटनेस है। मेरे को उस वक्त मतलब था थोड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे वो मेरे अंदर से चला गया। ऐसे भी बच्चे हैं जो इसी कॉलेज में 65% मार्क्स से भी पास हुए, मैं उनसे भी किसी भी टॉपिक पे उस वक्त भी डिस्कस कर सकता था और आज भी कर सकता हूँ। तो मार्क्स मैटर नहीं करते। मैं बेरेट से पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मैं डिफरेंस बता रहा था, उस वक्त आपको भूल गया। बेरेट को लॉ है जो एक कानून देश ने पास कर दिया पार्लियामेंट ने, और कमेंट्री में अलग अलग ऑथर्स के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बेस्ड होते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के या फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स पे और उनकी अपनी नॉलेज पे। तो वो कमेंट्रीज हैं, वो अलग अलग भी हो सकती हैं। बेरेट से पढ़ता था मैं और एग्जाम दे देता था। थेफ्ट इज रॉबरी। रॉबरी क्या होता है, किसी कौन बता सकता है? रॉबरी किसका एग्रीगेटेड फॉर्म है? बड़ा हुआ था, किसी ऑफेंस का बड़ा हुआ फॉर्म है, वो किसका, कौन सा ऑफेंस? थेफ्ट का। थेफ्ट किसने बोला? एक आवाज आई थी आपकी, थेफ्ट का ना। तो बेरेट से पढ़ के एग्जाम दे देता था। 70 60 75 जो स्टूडेंट में 65 ऐसे मार्क्स भी हैं, किसी में कम भी होंगे, वो मिला के 55% मेरी बनी है। कोई मैटर नहीं करती कि लॉ की नॉलेज उस वक्त भी ज्यादा थी और आज भी ज्यादा थी। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था इस कॉलेज में, मैंने तो दिवेश चोपड़े के ऑपोजिट वो लिया था। उसमें एक टॉपिक था कि जो सिगरेट है वो लड़कियों में बैन होनी चाहिए। कितने लोग इस बात को कहते हैं होनी चाहिए? अगर आज आपको एक टॉपिक दे दिया जाए लड़कियों में सिगरेट बैन होनी चाहिए। फैक्ट्स ये थे कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, देन उसका जो बेबी होता है वो अपाहिज हैंडीकैप पैदा होता है बिकॉज ऑफ द रीजन। सिचुएशन चेंज नहीं करनी, क्योंकि मूड कोर्ट की जो सिचुएशन होती है वही होगी जो आपको मिलती है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सिगरेट से उसको ये प्रॉब्लम हुई और उसका बच्चा अपाहिज हो गया। और ये टॉपिक हमें डिस्कस करना था। दिवेश चोपड़े को तो अदर साइड एंड मैं एक तरफ था, तो कॉलेज दिया, मैं दिवेश को बोला कि चूज कर टॉपिक। तो मैं आपको बोलता हूँ चूज करो टॉपिक, किस तरह बोलोगे? आप किस तरह बोलोगे अगर आज आपको ये ऑप्शन दिया जाए? बैन नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन है, कौन बोलेगा बैन होनी चाहिए? मुझे पता था, जैसे देखो यही कॉन्फिडेंस मैं आज आप में चाहता हूँ। मुझे पता था अगर मैं दिवेश से पूछूंगा, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब हम कोर्ट में भी ना, द्वारका कोर्ट में 4000 लॉयर हैं, 4000 में से 2500 लॉयर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बट जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो फिर हम अपोजिट होते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर आवर क्लाइंट एंड द एडवोकेट दैट पूरी ऑनेस्टी एंड पूरी नॉलेज मुझे देनी है। मुझे पता था दिवेश नहीं बोलेगा बैन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी आर्गुमेंट है, इक्वालिटी का वायलेशन कैसे कर दोगे। तो मुझे भी पता था दिवेश कोई टॉपिक उठाएगा, मैं चाहता था तो वही उठाए। मेरे को अपोजिट साइड जाना, मैंने बताया था मैं हमेशा टॉप साइड जाऊंगा। जिस दिन आप लोगों ने टॉप साइड जाना शुरू कर दिया, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो गए। मैंने आपको पहला ये स्पीच स्टार्ट किया था, टॉप साइड चूज करना शुरू करो। क्योंकि अगर मूड कोर्ट की सिचुएशन ऐसा तो है नहीं दूसरी साइड ब्लैक हो जाएगी, कुछ तो होगा। किसी एकेडमिशियन ने, किसी टीचर ने वो सिचुएशन बनाई है, तो ऐसा तो नहीं है दूसरी तरफ का स्कोप भी छोड़ा नहीं होगा, तो छोड़ा होगा स्कोप। मैंने दिवेश से जैसे कहा, दिवेश ने कहा नहीं बैन होनी चाहिए, इक्वालिटी का वायलेशन बैन नहीं कर सकते आप। ठीक है, मूड कोर्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। वो सर एक लड़की थी, क्या दीपिका, क्या नाम था मुझे याद नहीं है, वो मेरी पार्टनर थी, उसमें नाम याद नहीं है मुझे, फर्स्ट बैच में बहुत लंबी लड़की थी, नाम याद नहीं है। वो मेरी पार्टनर थी और दिवेश का भी कोई था, मुझे उसका भी पार्टनर है। तो जब हम मूड कोर्ट कंपटीशन में एंटर किए तो दिवेश को इतनी सारी बुक्स थी, तो माय पार्टनर सेड टू मी, पीयूष यार देखो ये कितनी बुक्स लेके आया है। थोड़ी सी एजिटेशन तो मुझे भी हो गया है, तो मैंने क्या बोलेगा, लेकिन मेरे पास एक पतला, तो उस दिन भी ऐसी एक पतली से भी पतली नोटबुक थी, मैंने नहीं देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बेसिकली कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया था, नॉर्मल सी बात थी। मैंने पूरा का पूरा आर्गुमेंट वेलफेयर स्टेट पे किया, जो आपको कन्विंसिंग लगना चाहिए, नहीं भी लगेगा तो आप रिसर्च करके मुझे मेल कर देना कि स्टेट के आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि सारे लॉ को वही गवर्न कर रहा है, लॉ उसके फेवर। हमारा सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेलफेयर स्टेट। हमें कौन चाइल्ड, क्योंकि प्रेग्नेंट तो लड़की ही हो सकती है, लड़का तो प्रेग्नेंट हो नहीं रहा। अब अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है और ये जो मेडिकली प्रूवन फैक्ट है, हालांकि मुझसे पूछो तो आपको इंडिया में बैन कर दो सिगरेट, मैं खुद कहता हूँ कि हेलमेट लगाना कंपलसरी है और सिगरेट पीना बैन नहीं है। तो आप जो स्टेट की हिपोक्रेसी है, जहाँ तो आपको टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, मैं मर रहा हूँ मेरी मर्जी, तो मैं सिगरेट से भी तो मर रहा हूँ फिर, तो आप बैन करो। इस पे भी मैं कभी पीरियड डाल सकता हूँ, आप देख सकते हो कि इफ यू आर आस्किंग मी टू पुट हेलमेट एंड सीट बेल्ट, देन यू शुड आल्सो आस्क एवरीबॉडी इन दिस कंट्री टू स्टॉप स्मोकिंग, तो उससे भी कैंसर होता है। आपने सिगरेट के डिब्बे में दिया स्मोक स्किल्स, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। तो मैंने आर्ग्यू किया कि वेलफेयर स्टेट बनाना है और आपके पास एक प्रूवन फैक्ट्स आ गए कि उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी वेलफेयर स्टेट तो नहीं बन रही। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को मैंने पूरा पढ़ दिया, सर विटनेस से बाक्षी मैम थी तब, तो सबने देखा था और वो आर्गुमेंट बहुत अच्छा हुआ था। मुझको कमीशन को जीत हार नहीं होती, अपना अपना आर्गुमेंट रखना है। एंड दिस इज द वे मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आपको मानते ही जाना है। तब भी मैंने वो क्रिटिक आर्टिकल लिखा था कि जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो प्रॉमिस ऑफ मैरिज इतने सालों से, दैट इज विक्टिमाइजिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड जो एक जेंडर है डेफिनेटली उसका भी टच हो रहा है, क्योंकि मिसयूज ऑफ लॉ बहुत है। अब वो एविडेंस की वैल्यूज में एविडेंस है, मेरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एविडेंस इन्वॉल्व है। कैसे साबित करोगे प्रॉमिस था नहीं था? इट इज स्टेट ऑफ माइंड। आपने किसी को उठा के जेल में डाल दिया, पुलिस को ये टेक्निकलिटी समझ नहीं आएगी, प्रॉमिस में है, लव में है, ये पुलिस के इतना दिमाग नहीं चलता, ठीक है। अब ये सब हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता मतलब रिकॉर्ड में है, मतलब दिमाग के अंदर कि वो टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। टेक्निकलिटी को पुलिस इतनी डीपली नहीं, उनको लॉ पढ़ाया जाता है, बट इस टेक्निकल लेवल पे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, 40-40 जजमेंट पढ़ते हैं, पुलिस इतना टेक्निकल होकर नहीं पढ़ सकती, ना उनका वो जॉब है। तो टेक्निकलिटी पुलिस समझ नहीं पाएगी, जेल में डाल देगी, 5 साल बंदा जेल में रहेगा, फाइनली उसका एक्विटल हो जाएगा। लेकिन जो स्टिग्मा लग गया कि रेप केस में बंद था, तो उसको भी तो हमें बैलेंस करना है। लॉ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो बैलेंस कैसे होगा? राइट, मेरे को तो टैग लग गया, कौन अब आप पड़ोस वाली आंटी को क्या समझाओगे कि मैं बरी होके आ गया हूं? वो कहेंगे रेप केस में बंद था, इससे कौन करेगा शादी? तो एक एक्ट से पूरा सोसाइटी का सर्कल खराब है। उसकी अगर कोई घर में भाई है, बहन है, माता पिता है, सब पे टैग लग गया। आर्टिकल है कि इतनी आप उसको ऑफेंस बना दीजिए, किसी और ऑफेंस बना दीजिए, लेकिन आप इसको रेप का टैग लगा दीजिए और इसको जेंडर बायस मत रखिए। क्योंकि ये सिचुएशन कि किसी ने किसी को धोखा दिया, ये सबके साथ आप चीटिंग का कोई फॉर्म बना दीजिए, नया एक्ट को अमेंडमेंट कर दीजिए, किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कर लीजिए, लेकिन रेप के डेफिनेशन में मत लाओ इसे, क्योंकि रेप नहीं है। दोनों क्या कर सकते हैं? धोखा दिया ना बेसिकली, किसी को तो धोखा है, अलग जजमेंट दोनों में है। बट अगर आपको हाई कोर्ट स्पेशली जाना है, और नो डाउट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट इंग्लिश की लैंग्वेज का यूज लॉ में ज्यादा है, ठीक है। जितने भी आप कॉलेजेस में जा रहे हैं वहां तो इंग्लिश मैंडेटरी कर रखी है, तो कोशिश करो जो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं वो इंग्लिश में करें। अब मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने जैसे बताया, मैं हिंदी में नहीं कर पा रहा था, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैं आज भी हिंदी नहीं लिख पाता। अब वो मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मेरे को हिंदी जब मैंने छोड़ी होगी 8th क्लास में जेएसएस में, उसके बाद कभी हिंदी नहीं पढ़ाई, तो मैंने रुद्रपुर को छोड़ दिया। लेकिन एक स्टेटमेंट दिया था अपने आप को वापस नहीं आना, मन में ये था कि नहीं होगा तो आएंगे, स्ट्रेंथ यूज, उसको मैंने अपने स्ट्रेंथ की तरह यूज किया, अपने फादर की प्रैक्टिस को, लेकिन मैं स्टेटमेंट दिया था कि नहीं करना। इसी तरीके अपने आप से एक स्टेटमेंट दे दो, जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था बाय लॉ, आज सीरियसली सही आंसर देना अपने आप को, मिल जाकर डायरी में लिख देना बाय लॉ, सिर्फ 2 लाइनें लिख देना और उस पर काम करना शुरू कर दो। और अपने आप से पूछ लेना हर महीने की 30 तारीख को अपने आप पूछना है, मैं ठीक चल रहा हूँ? जो स्टेटमेंट दिया था दिसंबर 27 को, क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ? अपने आप को देखना। अगर आपका हर बार आपका यह आता है तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। आपको डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन के लिए मार्गदर्शक के टीचर हैं, ठीक है, सीनियर हैं, आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को एक स्टेटमेंट जरूर देना, ये आप लिखो अपने डायरी, यू विल मेक अ स्टेटमेंट टुडे, लिखो आप, वी विल मेक अ स्टेटमेंट टू आवरसेल्फ कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
उसके बाद हाउ टू बी अ गुड लॉयर के अंदर एक दो चीजें हैं वो आप लिखो, लिखते चले जाओ। पहला है कि हमें बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ने हैं। कितने लोग जजमेंट्स पढ़ते हैं? बहुत सारे। बाकी जगह लोग जजमेंट्स नहीं पढ़ते। आप डायरेक्ट पढ़ के लॉ को जान लेंगे, लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन बहुत वैल्यू करती है। इंटरप्रिटेशन समझते हैं? इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है? आप बताओ। नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं जा रहा है। इंटरप्रिटेशन इंग्लिश का वर्ड में जाए तो इंग्लिश क्या होता है? किस तरह के लॉ को समझना, मरोड़ना तोड़ना कहते हैं ना। लॉ की एक परिभाषा आपने एक पढ़ ली, लेकिन एक्चुअली जो लॉ है उसको किस तरीके से आप मतलब फेवर अगेंस्ट क्या सकते यूज करोगे, किस तरीके के लॉ का सही अर्थ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरीके से डिस्कस किया हुआ है, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो लॉ की इंटरप्रिटेशन सही मायने में आपको जजमेंट पढ़ के होगी। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 जजमेंट रोल पड़े, जो ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ कंसिडरिंग के स्टूडेंट्स हैं। 2 से 3 जजमेंट आप करो। एक क्रिमिनल में से सपोज आज आपने सोचा मैं क्रिमिनल पे आज बेल पे कोई जजमेंट पढ़ूंगा, दूसरे दिन आपको जो जजमेंट पढ़ना है वो सिविल पे कोई पढ़ना है, तीसरे दिन आप किसी और टॉपिक पे पढ़ चुके। कितने लोगों ने सोचा होगा कि हम क्रिमिनल लॉयर बनेंगे? बताओ। और कौन कौन है? अब आप बताओ क्यों आप क्यों बनो क्रिमिनल लॉयर? सिविल क्यों नहीं? That's what the point is, exactly यही सुनना चाहता था। क्योंकि सिविल लॉ वास्ट है, बहुत बड़ा है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो आधे से ज्यादा लॉयर्स ने, मेरे साथ भी फ्रेंड, हम नहीं करते क्रिमिनल, मैंने तो समझ में नहीं आता, वो हम नहीं करते सिविल, मैंने समझ में नहीं आता था सिविल, तो सिविल इसलिए नहीं कर रहा। दोस्तों में ऐसी बात होती है ना। तो सिविल नहीं करेंगे, क्रिमिनल नहीं करेंगे, ये वाली में 2 मेथड हटानी है। कोर्ट अलग है, लॉ कॉलेज अलग है, इसको डिलीट करना है अपनी जिंदगी से। शायद अब तक इतने डिस्कशन के बाद तो कर दिया होगा आपने। दूसरा, हम क्रिमिनल करेंगे, सिविल नहीं करेंगे। कभी नहीं सुना मैंने अभी तक 11 साल में कोई सिविल करूंगा क्रिमिनल नहीं करूंगा, मैंने नहीं सुना। आपने सुन लिया पता नहीं सर, आपने सुना? सिविल नहीं करूंगा क्रिमिनल नहीं करूंगा, मैंने नहीं सुना। क्योंकि क्रिमिनल इजी है। इजी कहते हैं कि आप जाते हो कोर्ट में, बड़ा स्पॉन्टेनियस कुछ भी शुरू हो जाओगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर दोगे, 10 सवाल पूछे, 2 सही पूछे, 4 गलत पूछे, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन सिविल केस में ऐसा नहीं है। आपने जो लिख दिया अपनी प्लीडिंग्स में, अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करते हुए, प्लेंट क्या होता है? व्हाट इज प्लेंट? कौन बताएगा? पूरी प्लेटिंग दावा, प्लेन मीन दावा। पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पेरेंट पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, मुझे लग नहीं रहा है ऑनेस्टली हम देंगे। ये तो आंसर आपको यूज सबको दे देना चाहिए। जवाब दावा की इंग्लिश क्या होती है? जवाब दावा हो गया, उसके ऊपर जो रिप्लाई आता है उसे जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट। तो जब आप प्लेट को प्रिपेयर करते हो तो आपको जो लिख देते हो ना, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको लॉ पता, आप उस प्लेटिंग के बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए। और अगर जो नहीं लिखा वो भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो सिविल जो ये वाली बात हटानी है कि मैं सिविल नहीं करूंगा, क्रिमिनल करूंगा, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि हमें बेसिकली लेंथी है, वास्ट है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसको छोड़ देते हैं। एज ए यंग लॉयर, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो दोनों कर रहा हूँ। एज ए यंग लॉयर हमारे पास ये ऑप्शन का है कि मैं क्रिमिनल करूंगा, सिविल करूंगा। एक लेवल आता है सिद्धार्थ, दूसरा इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, आप भी कोई और सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है आज वगैरह, आज वो दूसरा मैटर्स भी कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे उन्होंने क्रिमिनल का बना लिया, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स इतने ज्यादा थे उनके पास कि उनको सिविल का टाइम नहीं था। तो वो ये स्टेटमेंट देते हुए अच्छे करते हैं कि अभी आई रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू सिविल और मैं रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू क्रिमिनल। बट एज ए यंग लॉयर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हम लोग तो जो केस आएगा, मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए सोसाइटी में जो चल रहा है। बिकॉज आप लॉयर हो, तो अगर आपसे पड़ोसी ये डिस्कस कर रहा है कि मैं यहाँ मैं भी लैंड कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं पता होता, कोई क्लाइंट ऐसा है दोस्त पीयूष यार वो चलान आ गया, उसका फाइन देना है, तो नहीं पता होता, करते नहीं है हम लोग, क्योंकि वो प्रैक्टिस बेसिकली चलान वाली करने वाली है नहीं हम लोगों के लिए। उसमें हमने कुछ करना ही होता है। जो लोग कर रहे हैं बेचारे वो लॉ पढ़ते नहीं है, वो लॉ पढ़ते नहीं है तो कोर्ट जाएंगे चलान का काम करते हैं, क्योंकि उसमें करना क्या है, फाइन जमा कराने आप लॉयर की जरूरत नहीं है। ये बिटवीन यू एंड मी कई लोगों का चल रहा है उससे क्या, लेकिन उसमें जरूरत नहीं होती। तो वो चलान में मुझसे कोई पूछ लेता है कि चलान में फाइन क्या, नहीं पता। बट एज ए लॉयर आई थिंक मुझे पता होना चाहिए। मैं नहीं करता ये गलत है, बट दैट इज ऑल्सो लॉ कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव का इतना चलाना है, ये तो पता होना चाहिए। तो एज ए लॉयर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, पहले चीज।
तो ये मिथ को हमने हटाना है कि हम सिविल के लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, आप एज यंग लॉयर सब कुछ हो, जब तक कि आपके पास ऐसा समय आ जाए कि टाइम नहीं है। अभी ऐसा टाइम आ गया मेरे को 100 200 300 केस आ गए हैं, अभी मुझे एक ही करना है, तो आप ये स्टेटमेंट देते हुए अच्छे लगते हो। उससे पहले अगर दे रहे हो तो इसकी वजह हम समझ रहे हो भागर हो, होता नहीं है तो मैं करता नहीं, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ो आप, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सिविल को दिल से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी लेट शुरू किया है, कोई वो नहीं है, मैंने 2014 में पहला सिविल केस किया था, क्योंकि मैं अकेला था तो इतना टाइम नहीं मिलता था रिसर्च का या जो भी था, लेकिन फिर 14 के बाद लॉयर्स जोड़ने शुरू किए, अपने साथ टीम बनानी शुरू की। एक कॉन्सेप्ट होता है इंजंक्शन, सुना है किसी ने? क्या होता है इंजंक्शन? रिलीफ होता है सर, एक स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जगह डिफाइन है सिविल लॉ में, ठीक है। इंजंक्शन क्या है हिंदी में बताओ? किसी को रोक लगवाना, परमानेंट टेम्परेरी मैंडेटरी, ठीक है। अब आपका एक केस है ना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस करें, ऐसा नहीं कि जो मैंने डिस्कस किया वो मैंने कहा था ओपन टॉपिक्स हैं, सब वास्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन, जो मैं अपने इंटर्न्स को लॉ ऑफ केसेस समझाने के लिए हमेशा देता हूँ। जो मेरे साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे थे, आज आप में से कोई है जिसने मेरे साथ की हो ऑनलाइन इंटर्नशिप? क्योंकि चाणक्य लॉ कॉलेज के बहुत बच्चों ने ऑनलाइन इंटर्नशिप की थी, नहीं आप में थे। तो सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन उसमें भी मैंने जरूर कहा है, क्योंकि सिविल का एक आइडिया देने के लिए क्या होता है सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन। अब बात हो ये इंटरेस्टिंग, बेसिकली इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब हम डीप में जाएंगे। जब तक हमने समुद्र में गोता ही नहीं मारा तो उसकी डेप्थ का आइडिया कैसे लगा दिया कि इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कि शुरू का टफ होता है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन से सपोज एक प्रॉपर्टी है आपके पास, उस प्रॉपर्टी में ownership का dispute है, that is apparent from your pleading, that from your claim, if there is a dispute with respect to ownership, भाई कोई और आदमी कह रहा है वो मेरी है और आप कह रहे हो मेरी है। अब प्रॉपर्टी में वो बंदा घुसा हुआ है एक्स है डिपेंडेंट, आपने एक सूट फाइल किया कि वो प्रॉपर्टी में घुस गया या घुसा हुआ है और उसको मैंडेटरी इंजंक्शन से बाहर निकाला जाए। मैंडेटरी इंजंक्शन में कोर्ट कैन डायरेक्ट कुछ करने के लिए। अब ये सूट गलत है, क्यों गलत है आप बताओ? कोई एक जगह बताए, सिविल लॉ कुछ तो पढ़ाई होगा। और मैं आपको ऑनेस्टली आप एक चीज और डिस्कस करते हैं, मैं ज्यादा आंसर दे रहा हूँ, जितने भी मैंने टेक्निकल सवाल किए किसी ने आंसर नहीं दिया, ना दे पा रहा है। कारण ये कि हम बड़ी ऊपर से रहे। हमने मैंने जो कहा था कि आपसे इंस्टीट्यूट बन रहा है ना, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं मेरे पास, थर्ड ईयर का स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो इतनी बढ़िया लॉ की नॉलेज होती है, जो नहीं होती वो रिसर्च करके दे देता है। क्यों होता है? क्योंकि रिगरस स्टडी है, पढ़ बहुत ज्यादा रहे। सवाल वही है कि हम पढ़ कम रहे, क्योंकि हमारे कॉलेज जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली भी बहुत टफ नहीं, मैं आपको बता दूं, वहां के बच्चे भी आते हैं मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ही कहूंगा मैं, तो वहां पास होना बड़ा इजी है और पास हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो लॉयर बन गए, लेकिन ये नहीं पता कि अब हम एंटर कर रहे हैं एक इंजस्टिस करने के लिए लोगों को। मैं उस पर आपसे अगला सवाल उसी में पूछूंगा। तो ये सूट गलत है, कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता पाएगा तो आप खड़े करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट। पोजीशन ही तो मांग रहे हो आप, मैंडेटरी इंजंक्शन थे। हाँ, कुछ आपका ठीक है, टू द एक्सटेंट आपका ठीक है, अभी पोजीशन मांगना चाहिए था आपको और अभी भी गलती है, मांग लोगे फिर भी गलती है, बताओ आगे क्या गलती है। और ये कहेगी मैंने आपको मैंडेटरी इंजंक्शन दे दिया कि चल मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी से बाहर जाओ, देन ऑल्सो आप ओनर कैसे बने इस प्रॉपर्टी के? क्योंकि आपने उसकी डिक्लेरेशन नहीं मांगी प्रॉपर्टी की, आपने डिक्लेरेशन भी तो मांगना है कि कोर्ट डिक्लेयर करे ये प्रॉपर्टी मेरी है। डिक्लेरेशन के साथ पोजीशन, मैंडेटरी इंजंक्शन कि फ्यूचर में तंग ना करे मुझे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मांगनी, तो आपने डाला सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन कि इसको घर से बाहर निकाल दो। कोर्ट कह रही मैंने आपको दे दिया, आप जीत गए, मैंने प्रज्यूम सरकारी रेट पे कोर्ट कहेगी हमने प्रज्यूम करा कि आप ये केस जीत गए, देन व्हाट, हाउ यू विल बिकम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? क्यों? बिकॉज देयर वाज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू टाइटल, देन देयर वाज अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू टाइटल, आपने मैंडेटरी इंजंक्शन से क्या पाना है? तो दिस इज कॉल्ड सिंपलिसिटर सूट फॉर इंजंक्शन, जो लॉ में मेंटेनेबल ही नहीं। पहले डेट पे आपकी प्लेट उठाएंगे और ये उड़ जाएगी और आप आ जाओगे। फिर उसके बाद बता देता हूँ, तो रूल 2 का बार, रेजुडिकेटा का बार और पता नहीं क्या क्या बार, दोबारा सूट आपसे डरेंगे नहीं, ठीक है। तो सिविल इज सो टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग, अगर आप इसे दिल से पढ़ेंगे तो। स्टार्ट रीडिंग, जितने साल भी बचे, जिसके पास 6 महीने बचे वो 6 महीने का यूज करें, जिसके पास साल बचा वो साल का यूज करें, ज्यादा टाइम है तो लकी हो,
लेकिन ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। These 120 lawyers will be a very good lawyers अगर आप बातों को समझ रहे हो। आपके पास एक केस आता है, आपका नाम क्या है? सर यश। यश, अच्छा यश हो आप जी? आपसे मेरी इंटरेक्शन हो रखी है ना एक तो जी सर। हाँ यश, आपके पास एक केस आता है कि आप और हम क्रिकेट में सट्टा खेलते हैं, मैं सट्टे में हार गया 1 लाख रुपए, मैंने एक चेक इशू किया आपको, लो जी ये लो और लगा दो, वो चेक बाउंस हो गया। आपने कोर्ट में प्लीडिंग डाली, 138 का केस इनिशिएट किया कि हमने सट्टा खेला, मैं सट्टा जीत गया, देखो व्हाट्सएप मैसेज है, ये देखो एग्रीमेंट भी हमारे बीच में, और ये यूजर आ गए, अब ये चेक हमारा बाउंस हो गया, तो आप उस केस का क्या फेट होगा? वॉइड होगा। क्या केस क्या होगा? वॉइड क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस पे भी आएंगे, अब हम उसी पे आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा है। एनीवे आंसर जिस कंटेक्स्ट में मुझे मानना ठीक है कि ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब वॉइड एग्रीमेंट क्यों आई? वेजरिंग, क्योंकि आपने वेजरिंग डायरेक्ट पढ़ रखा था, वेजरिंग आपने डायरेक्ट पढ़ रखा था, तो आपको फटाफट क्लिक कर गया कि जो भी अनलॉफुल है। तो बोलिए इलीगल कंसिडरेशन का कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? वेजरिंग हो गया, बिल्कुल भी केस आपका चलेगा नहीं, बिकॉज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़े थे वो यही तो है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर ईच एंड एवरीथिंग। जो प्लीडिंग से, जैसे मान लो ये डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं था, बट ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल से वॉइड हो रहा है, वॉइड एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ओरल हो या राइटिंग में हो, ये चल नहीं सकता, तो वो वॉइड है, तो उससे आने वाली कोई भी एनफोर्सेबिलिटी, चाहे वो 138 की क्यों ना हो, तो वो भी मेंटेनेबल नहीं है। इलीगल कंसिडरेशन का एग्जांपल दो, आप सबने पढ़ लिया होगा इलीगल कंसिडरेशन। ब्लैक मनी डायरेक्टली नहीं, और इलीगल कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? कौन बताएगा? इन रिटर्न समथिंग। इन रिटर्न समथिंग, तो क्या है इन रिटर्न समथिंग? कुछ भी वैल्यूएबल आइटम को रखिए। मैंने आपको कहा उसको पीट किया हो, आपने पीट दिया, मैंने पैसे नहीं दिए, तो आपने मुझे रिटर्न में पिटाई दी थी ना उस आदमी की, तो इलीगल है। वेरी सिंपल एग्जांपल। तो सारी चीजें जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, और कोई भी सेक्शन आपके एक दिन में आप यू कम अक्रॉस एनी सेक्शन इन अ डे, उस सेक्शन में एटलीस्ट 2 जजमेंट जरूर पढ़ लिया करो। एक चीज ये लिख लो, कोई भी सेक्शन आप दिन में सुन लो, कुछ भी। आज आपने मेरे मुंह से कोई सेक्शन सुना है अभी तक? बताओ कौन सा? 138 और कौन सा? 378, 376, सेक्शन 90 और भी कुछ बोला। ये सारे सेक्शन जो एट 2-3 दिन में अगले, इन पे एक जजमेंट पढ़ना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। हो सकता है अभी पूरी तरह से मेरी बात समझ में ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक जजमेंट आप पढ़ लेना इन सारे टॉपिक्स में, ऑनेस्टली पढ़ लेना। ठीक है, ये टॉपिक्स आप उठाओ। तो अब आपने जब सर ने आपको इलीगल कंसिडरेशन पढ़ाया होगा, तब एटलीस्ट पे जजमेंट पढ़ो, क्योंकि जब आप कोर्ट सर के साथ पढ़ोगे तो एक लिमिटेड टाइम होता है, 45 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें सर के पास एक लिमिटेड टाइम है, वो आपको ब्रॉडर आइडिया देंगे, लेकिन उस ब्रॉडर आइडिया के बाद आपको उस टॉपिक को ठीक से कर जाके एटलीस्ट 2-4 जजमेंट और कमेंट्री में क्या लिखा है, रिलेटेड क्या है, आपको सब पढ़ना है। और जजमेंट जब आप पढ़ोगे तो फिर वही बात आती है कि क्या इलीगल है। मेरे पास अभी एक जूनियर काउंसिल आए थे ड्राफ्टिंग करके, उन्होंने ऐसे दिखा दिया तकरीर और सर ये देखो तो ड्राफ्ट ठीक है मेरा, देखा मैंने, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मिस्टर एक्स को मैंने 4 लाख रुपए दिए थे, मिस्टर एक्स ने मुझको 4 लाख रुपए रिटर्न करने के लिए 5 बारी 3.5% के हिसाब महीना, मतलब साहूकार वाली ब्याज 12 into 6 36 and 36 and 6 42% ब्याज साल की। तो मैंने ब्याज के तौर पे 50,000 लाख रुपए ले लिए और अब ब्याज बना के 4.5 लाख का चेक मुझे वापस दे दिया। ये 138 का केस की ड्राफ्टिंग थी। तो क्या गलती है इस केस में? मैंने उस प्लेन को उठाया, मैंने कहा फाड़ दे प्लेन को फटाफट, तो तेरा क्लाइंट केस हार जाएगा। तो क्या गलती है इस केस में बताओ? जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया उसी से रिलेटेड कैसे इलीगल कंसिडरेशन कैसे ही होता है ना, कुछ तो इलीगल है ही। अब आपने क्यों हुआ ये आपके साथ? क्योंकि जब आपने कंसिडरेशन और ये सब टॉपिक पढ़े, आपने कोई जजमेंट पढ़ने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि
जजमेंट छोड़ोगे तो न्यू फैक्ट्स आएंगे। मैंने क्या होता है, सर के पास 1000 फैक्ट्स डिस्कस करने का टाइम नहीं होगा इस क्लासरूम में। आपके एक लिमिट, आप पूछोगे क्वेरी तो आ जाएगी, क्वेरी भी तब आएगी जब आप जजमेंट पूछोगे। सर ये केस में हार गया, प्लेंटिफ क्यों हार गया सर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपने जो ट्रांजेक्शन की बात कर दी 42% ब्याज की, वो एज ए इंडिविजुअल आप एंटाइटल्ड ही नहीं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, आपको वेजरिंग पढ़ लिया था क्योंकि आपने बुक में पढ़ा था, फटाफट बोल दिया आपने 3.5% ब्याज ले कैसे लिया, आप बैंक हो क्या? बहुत सारे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो है हमारे पास कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, किसी कॉलेज में नहीं। जब जजमेंट पढ़ोगे तो आप लोग अच्छा ऐसा भी एक एक्ट है। तो आपके जो ट्रांजेक्शन आपने जो प्लीड कर दिया वो डायरेक्टली इलीगल था। आपने 3.5% ब्याज लगा के कुछ पैसे तो ले लिए, कुछ आपके चेक में जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है बार्ड बाय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द जजमेंट डायरेक्टली बाय द हाई कोर्ट की आपकी जो ट्रांजेक्शन इलीगल है। दूसरा, आप 4 लाख रुपए के 4 लाख के लिए एंटाइटल्ड थे, 1 लाख आप दे चुके हो, चेक अमाउंट आपकी ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा वाला लायबिलिटी है नहीं, उस चेक की तो लायबिलिटी नहीं है। सिविल केस डाल के कोर्ट सेटल करा देगी, इतने ही दे रहे हैं, इतने ही दो, वो एक अलग बात है। लेकिन 138 मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है, जो आपकी अमाउंट है वो एक्सीड कर रही है जो आपने दिया है, और आप बैंक नहीं हो जो मनी चार्ज करोगे। ठीक है, और बहुत सारे केस हम ऐसे ही जीत रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिखा नहीं होता। ये तो अपरेंटली गलत था जो मेरे जूनियर लेके आए, अपरेंटली। मैंने कहा तूने पढ़ाई दिया, तूने क्लाइंट के केस करने शुरू कर दिए, तू गलती करेगा, क्लाइंट का नुकसान ही करेगा अल्टीमेटली। तो पहले पढ़ो, कोई क्लाइंट कोई केस आता है उस पर रिसर्च। मैंने भी वो रेप केस जब किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने पढ़ा ना रात भर। तो पहले आप पढ़ो, जस्टिस तो क्लाइंट के साथ भी करनी है ना, फीस ले रहे हो तो बहुत सारा पढ़ना ही एक ही सोल्यूशन है। जिसको कम पढ़ने की आदत है और अगर इस प्रोफेशन में है तो उसको भी प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एंटायर लाइफ हमें पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें भी ऐसा नहीं है, लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, लेकिन इतनी हद तक नहीं होती जितनी हमारी होती है। हमारे तो सुप्रीम कोर्ट आज कुछ कहते कल कुछ कहते, क्योंकि क्या होता है, डायनामिक है सोसाइटी। इतनी गलत था, पहले वाला गलत नहीं था, सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी की जरूरतें चेंज होती रहती है। तभी केशवानंद भारती और केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती थी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 1970 की सोसाइटी की कुछ और डिमांड थी, 2021 की सोसाइटी की कोई और डिमांड है। ठीक है ना, तो इसलिए वो चेंज होता रहेगा, लॉ थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन बदलती रहेगी। तो आप अगर उसको पढ़ते रहोगे तो ये, और जिसको पढ़ने की आदत नहीं है वो कभी भी अपडेट नहीं हो पाएगा, और अगर वो अपडेट नहीं हो पाएगा तो देन अगेन। अब इसमें भी होता है, मिक्स जजमेंट है, अगर सिर्फ रिकॉर्ड में यही साबित हो पाता है कि गलती से एक आध बार ब्याज लिया तो उसमें जजमेंट आ रहा है कि मैं उन जजमेंट को फिर क्रिटिसाइज करता हूँ, एक बार भी अलाउड नहीं है। इलीगल एक्टिविटी एक बार हो या 2 बार हो, लीगल नहीं होता है, तो उसमें एक आध मिक्स जजमेंट है कि अगर एक आध बार ब्याज चार्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये कि हर छोटी से छोटी बारीकी केस को ड्राफ्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे क्लाइंट कैसे बने, वो टॉपिक छूट गया। तो जो हम बात मैंने यहाँ तक कर दी थी, डिससेटिस्फेक्शन रेट नहीं है। आज तक 11 सालों में मुश्किल से कितना, 1000 का 2% कितना होता है, 20 लोग होंगे, 20 बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैंने 4-5 लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड हुए होंगे। और मैंने आपको ये बता रहा आई रिकॉर्ड में, आप कैलकुलेट करना, मेरी जो ऑफिस में फाइलों का नंबर चल रहा है 1300 कुछ चल रहा है, एंड दैट इज एक्सक्लूडेड ऑफ दैट पैनल दैट आर हैविंग नेशनल हाईवे के 1000 केस है मेरे पास और पैनल्स के भी कुछ नंबर्स हैं। मैंने 1300 इंडिविजुअल क्लाइंट्स को डील कर दिया, और अगर आप 10 साल से डिवाइड करें तो एक साल में कितने होते हैं, 130 क्लाइंट। 130 को अगर 365 की छुट्टियां हटाते हैं तो एवरी सेकंड डे और थर्ड डे आई एम हैविंग अ न्यू क्लाइंट। कैसे? क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन रेट नहीं है। जिसका केस लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा और उसके केस को जितवाया, या उसको जो भी जस्टिस मिली थी वो दिलाई, तो उसने किसी और को बोला कि उसके पास जा, फिर उसने 2 को 4 को, फिर 4 को 16 को, इस तरीके से आपके क्लाइंट बनेंगे। ये एक यंग लॉयर की बड़ी ज्यादा टेंशन होती है कि सर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट कैसे बनेंगे। वो क्लाइंट ऐसे बनेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये बहुत धीरे बनेगा। अब आपके पास 4 लोग आए, 4 में 3 को तो आपने केस करवा दिया, एक आप जीत गए गलती से, या लॉ क्लियर था, या किसी ने सलाह मिल गई अच्छी, तो फिर वो आपका जो रेफरेंस है 3 तो बंद गए, उसके पास मत जाना, और एक जो है वो कहेगा हाँ यार अच्छा चले जाना। तो ये स्पीड कितनी स्लो हो जाएगी, ये वैसे स्लो होती है। 5 साल एक कीमत कैसे सुनी है कि 5 साल सबसे तो होने लगेंगे लॉ प्रोफेशन। सुनिए ये भी लिख लो, काट लिया 5 साल 5-6 साल तो सेटल होने लगेंगे, वकील बन रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनी तो सुन लोगे, तब याद कर लेना, तब उस बंदे को आउट। ठीक है, 5 साल उन्हीं को लग रहे हैं जो 5 साल यहाँ घुमा रहे हैं।
सीधी सादी साफ सुथरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। 5 साल अगर आप मेहनत करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा, तो 1 साल में 25 से 30 क्लाइंट जुड़ जाएंगे, एक नॉर्मल आपको इनकम जनरेट होने लग जाएगी, फिर आपके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। तो 5 साल लॉ कॉलेज में मस्ती करके 20 क्वेश्चन से पढ़ के कॉलेज ना आके, कॉलेज आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने बच्चे यहाँ है ना, अगर इस डिस्कशन को सीरियसली लिया तो हमेशा एक भी क्लास में कमिट टू योरसेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू सर। अपने आप से कमिट करो कि हम कॉलेज जरूर आएंगे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ उनके, और अगर 1-2 बच्चे यहाँ हो तो माय अपॉलॉजीज। जो बच्चे दुकान चला रहे हैं और पूरा दिन दुकान में बैठते हैं और लॉ कॉलेज कर रहे हैं, वो तो हमारे प्रोफेशन का नाम खराब कर ही रहे हैं। बहुत ऑनेस्टी में ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे बैच में भी थे, शाम तक वो दुकान में बैठते थे, वो लॉ कॉलेज में आते नहीं थे, ठीक है। ऐसे लॉयर की वजह से लॉयर की शादी नहीं होती है, पता है, लोग कहते हैं यार, ठीक है ना। तो अगर आप लॉ कर रहे हो तो लॉ को करो, अगर आपको दुकान चलानी है आप चलाइए। हमारे प्रोफेशन में एक लिबर्टी मिली हुई है इंडिया में, क्योंकि बार काउंसिल ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था कि लॉयर इतने ज्यादा बनाए कि कोई भी लीगल एड से वंचित ना रहे, तो लीगल एड सेटअप हो गए हैं। आगे आगे शायद सिग्नेचर होगी, वो भी जो एग्जाम शुरू हुआ है वो भी इजी है, टफ हो जाएगा। तो जिनको दुकान चलानी है, जिनको कोई और प्रोफेशन कर रहे हैं, वो ना आए लॉ कॉलेज, वो छोड़ दे, क्योंकि उससे क्या है, बाकी जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको नाराज हो रहे हैं, वो उनकी मतलब आई मीन उनको नुकसान हो रहा है। और एटलीस्ट कोर्ट के बाहर, इस प्रेमाइस के बाहर दोस्ती अच्छी बात है। जो पढ़ने वाले रेगुलर बच्चे हैं वो अपना ग्रुप क्लियर करें कि हम पढ़ने वाले हैं, हमें पढ़ना है, हमारा वो ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक जरूरी है, ये जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है, विटनेस किया है इस चीज को। मेरे साथ भी बच्चे थे, दुकानों में बैठने के बाद मेरे को लगता था यार मैं अलग कैसे हो रहा हूँ इससे, ये तो वही, और ये तो पढ़ता नहीं है, और इसलिए मैं भाग गया क्योंकि वो मैं जब उनको कोर्ट में देखा था, वो मेरे को उसमें लगा कि अब ये गड़बड़ हो जाएगा, इनके साथ में बैठा, क्योंकि बता नहीं पाओगे आप क्या पढ़ के आए, क्या क्या नोट किया, आप बताओ, आपका नाम क्या है, बताओ क्या क्या नोट किया। आपने क्या क्या समझा, आपने सेकंड क्या क्या समझे, जो आपको याद है, जो हम डिस्कस करते, क्या क्या समझा, या इनमें से कोई 2 चीजें जो आप हो गई यार ये मैं अपनी लाइफ में आज से अप्लाई करूंगा, ठीक है। और ध्यान से सुनो, पढ़ो आप। देखो मैंने अभी 1 घंटा हुआ है मुझे बोलते हुए, अगर आप 1 घंटे में, मैंने क्या कहा था, ऐसे लेक्चर्स और सेशंस बहुत होते होंगे लाइफ में, ठीक है। यूट्यूब पे जाओगे ढेरों मिल जाएंगे, कोई मैं ऐसा कोई अलग आपको आके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ये है कि मैंने जो अप्लाई किया अपनी लाइफ में, और मैं अभी सबने कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि 5 साल सेट होने में लगेंगे। 5 साल जब मेरे को हो गए थे 2015 में, मेरे पास 3 जूनियर थे उस वक्त, बैठ व्हाट्स गुड नेम, मेरे पास 3 जूनियर थे 2015 में। जिस टाइम को आप बताते हो वो लोगों को सेट होने में लग जाएंगे, ठीक है, वो टाइम पे मेरे पास, आपके घर में कोई लॉयर है, आपके सेकंड, तो जिस टाइम का आप कह रहे हो उस वक्त मेरे पास 3 जूनियर थे, और इंटर्न्स की आज मेरे ऑफिस से 100 इंटर्नशिप हो चुकी है। मुझे सिर्फ 11 साल ही हुआ। अगर आप टोटल टाइम देखो कि सर ने कब शुरू कर दी होंगे इंटर्न देने, 2010 में तो नहीं कर दी होंगे ना, 2010 में आया, अभी खुद सिखानी, दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। एक एटीट्यूड से आते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं रखता मैं किसी को, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो। कल से अगर कल मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं सर से ये भी डिस्कस करूंगा, जो लोग रुद्रपुर से मूव करना चाहते हैं, एटलीस्ट अगर अगले सालों में, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ सेटबैक हमें भी हुए, अगर एक बच्चा जो दिल्ली मूव करना चाहता है, ज्यादा नहीं कह सकता, एक की कमिटमेंट, हर साल एक रिक्रूटमेंट यहाँ से हम कह रहे हैं, कम से 10 बच्चों का इंटरव्यू करें, जो 10 बच्चे दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, उन 10 का इंटरव्यू किया जाए और एक को लेके जाया जाए। तो ये आगे ऐसा भी प्रैक्टिस सोच सकते हैं सर से, मेरे को सर आपने डिस्कस करना चाहिए कि कई लोग हैं मूव करना चाहते हैं, और कुछ ये भी है जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग की। तो मैं जब इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, जो बच्चे को मैं पूछता हूँ कि आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास, तो आधे से ज्यादा बच्चों का जवाब होता है सर हम सीखने आ रहे हैं। मैं वहीं उसका कट्टा मार देता हूँ और मैं अपनी इंटरव्यू प्रोसेस को चालू रखता हूँ, क्योंकि जो सीखने आ रहे हैं उनको तो मैं हायरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि सीखने नहीं आ रहे, आपने 5 साल सीख लिया। जो प्रोसेस है लर्निंग का, दैट इज नेवर एंडिंग इन दिस प्रोफेशन, हम सीखते रहेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ आजकल।
Every day there is some new situation I am handling and entering into that. I am researching for that. मैं पर्सनली भी रिसर्च करता हूँ, लेकिन एक बेसिक जो मैंने बात करी थी, बेसिक नॉलेज के साथ तो आओगे, तो जो लर्निंग करने आ रहा है वो कुछ नहीं पढ़ के आया ना, तो 5 साल इसे लगते हैं कि 5 साल यहाँ पढ़ा नहीं, फिर लॉ ऑफिस में जाके 5 साल सीखो, सीनियर के केस को डैमेज करो। 2 जूनियर आते हैं, मेरे पास भी हैं, एक को मैं टास्क देता हूँ जाके दिल्ली हाईकोर्ट में आर्ग्यू कर दो, मेरी ड्राफ्टिंग कर दो, पिटीशन ड्राफ्ट कर दो, और दूसरे को हम कहते हैं डेट लेना मैं आ रहा हूँ। तो ये डिफरेंस आपको करना है। पहले दिन सीनियर को पता लग जाएगा डेट लेने वाला है या मेरे लिए एक प्रोडक्टिव आदमी है। अब सैलरी डिस्कस नहीं करूंगा, 1 to 1 की बात कर लेना, प्रोडक्टिव आदमी को क्या पे करते हैं और डेट लेने वाले को क्या पे करते हैं, और पे स्टैंडर्ड्स कितने पुअर है आपको पता है, वो उन्हीं के लिए पुअर है जो डेट्स देते हैं हमारे लिए। Somebody is coming to my office and he is only useful for taking dates, कि तारीख ले लूंगा मेरे लिए, या सीनियर आ रहे हैं 500 और ले लूंगा, उसको क्या पे करूंगा और क्यों पे करूंगा, बहुत नॉमिनल खर्चा देते हैं उसको। तो ये आपको क्या बनना है यार, पहले दिन आप जा रहे हो सीनियर ऐसे ऑफिस में जाओ जहाँ जूनियर की जरूरत हो, अपने आपको इंटरव्यू में ढालो और इंटरव्यू को क्रैक करो। दिल्ली में बहुत होते रहते हैं, यहाँ का नहीं पता मुझे, और वही ऑफिस ज्वाइन करो, सीरियसली करो। जुडिशरी की तैयारी करो तो जुडिशरी की तैयारी करो, ये डबल नाव में पैर मत रखना कि थोड़े दिन में कोर्ट चले जाओ, दोनों नहीं होंगी। और मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ, दोनों नहीं होंगी। अगर जुडिशरी की तैयारी तो सिंसियरली 2-3 साल जो भी देने हैं, और उसका भी बेंच होना चाहिए। मैंने ऐसे देखे तो 11-11 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं निकले, निकल भी जाए तो क्या फायदा, एट द एज ऑफ 32 आप निकल भी गए लोअर जुडिशरी में, तो फिर क्या। अब वो मार्क्स चाहिए दुनिया के लिए, जज है जी तो अलग बात है, फिर आप करते रहो तैयारी। मेरा एक दोस्त था, मेरी 2015 में जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने उसे बोला मैं आज ही कहता हूँ, मेरे को हायर एजुकेशन देना हो, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं निकाल लूंगा, मैं टू माय बेस्ट एफर्ट, मेरा लक नहीं वो भी हो सकता है। तो मैंने उसको भी यही बोला कि अगर जुडिशरी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो कह रहा आप थोड़ा जूनियर था मुझसे, कह रहा आप निकाल दो और फिर रिजाइन कर देना। मैंने जस्ट टू प्रूव यू, मैं 2-3 साल बाद निकाल दूं और फिर मैं रिजाइन कर दूं, तेरे को साबित करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। नहीं, तो कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं करना क्या है। जुडिशरी करनी है कि सर मेरे को लॉ कॉलेज के बाद 3 साल देने हैं, मैं 3 साल 100% दूंगा अपना। उसके बीच में हाँ कोर्ट प्रोसीडिंग जाने के लिए 1 महीना पढ़ाई नहीं करूंगा, 1 महीना इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ, जूनियरशिप नहीं करने जा रहा, मैं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ कि मैं कोर्ट प्रोसेस को समझ लूँ। तो आप वो 1 महीना कर लो, फिर छोड़ के वापस। और वो क्या होता है, ब्रेक होता है। जब आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हो तो माइंड सैचुरेटेड हो जाएगा, आपको कुछ समझ आना बंद हो जाएगा वो 4-6 महीने बाद। तो उस ब्रेक को लो, बिल्कुल मत पढ़ो, और 1 महीना जाके आप कोर्ट की इंटर्नशिप कर लो जब एग्जाम थोड़े दूर हो आपके, और फिर दोबारा अपने एग्जाम में लग जाओ। वो टाइम लाइन सेट कर लो, उसमें ग्रेस पीरियड हर लाइफ में मिलता है हमें, 5-6 महीने ग्रेस मिलता है। आपको पता लगा लास्ट टाइम 5 नंबर रह गया, ग्रेस मिल गया। आपको लगा कि आपको मान लो 100 मार्क्स चाहिए था, आपके 40 जा रहे हैं, तो जज कर लो अपने आप को कि मेरे से नहीं हो रहा शायद, या फिर अगर हो रहा है तो आप 60 मार्क्स कवर करने के लिए जो भी क्वालिफाइंग लिस्ट है 70 मेरिट्स क्या जाती है, मुझे अभी नहीं है पता आजकल, तो मान लो 70% चाहिए तो उसके लिए मेहनत शुरू कर दो, और नहीं तो फिर आप क्विट करके प्रैक्टिस में। तो तीसरी चीज डेट, तीसरी होगी ज्यादा होगी मुझे याद है, डेट लेने वाला लॉयर बनना है या आपको किसी ऑफिस के लिए प्रोडक्टिव लॉयर बनना है, ये आप अपने आप को स्टेटमेंट दे देना। लिखो whether I want to be a lawyer who only takes date or an asset to some institute, some organization, ये आपको डिसाइड कर लेना है। और उसको जितनी भी चीजें आप लिख रहे हो उसमें काम भी करना है, लिखने से कुछ नहीं होगा। वो कैसे होगा, रास्ता आप ढूंढना है आपको। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% लॉयर डेट दे रहे हैं आगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि जो एनालिस्ट के बच्चे हैं उनके पास कॉर्पोरेट ऑफर बहुत होते हैं, उनको 1-2 लाख रुपए की सैलरी मिल जाती है पहले ही साल में, चौथे साल में उनकी जॉब लग जाती है और वो चले जाते हैं, प्रैक्टिस में कम आते हैं, और जो आते हैं वो अपनी लॉ फर्म सेटअप भी कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो कॉलेजेस से बच्चे आते हैं वो डेट ही लेते हैं, और ये प्रैक्टिस दिल्ली में 50% है, बाकी जगह पे 80% है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा तो डिस्क्लोज होगा। मैंने बहुत सारे ऑफिस रुद्रपुर में देखे जहाँ जूनियर्स 4 साल से आ रहे हैं बट वो कुछ नहीं कर पाते। तो 5 साल लॉ कॉलेज, 4 साल लॉ ऑफिस, 9 साल में कुछ कर नहीं पाते। तो अगर आप 9 साल में कुछ कर नहीं पाते तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से ना। तो इस चीज में आप ध्यान रखना कि आपको क्या करना है और उसका आप क्या मेहनत करते हैं। चलो हम फटाफट कर लेते हैं। पहला हो गया जजमेंट हमें पढ़ने, मैंने की पॉइंट लिख लिए थे आपके लिए, क्योंकि अगर डिस्कस करूंगा तो मैं पूरा दिन भी बोल सकता हूँ और आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, फिर एक एक करके जाने लग जाओगे बाहर। जजमेंट पढ़ने की डिस्कशन के बाद जो मैं आपको समझने के लिए, दूसरा आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च एंड जजमेंट इज मोर और लेस टुगेदर चलता है। रिसर्च आप कमेंट्री से भी कर सकते हो, ये डिफरेंस है।
तो खूब रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक में। जो सेक्शन आया दिन में उसको पढ़ना शुरू कर दो, और एक दो से ज्यादा नहीं आएंगे। आज तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको 5-6 सेक्शन आ गए, अदरवाइज आपको एक दो सेक्शन भी मिलेंगे, क्योंकि उन सेक्शन पे आप जजमेंट करो। इसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो प्रैक्टिस में आएगी, क्रॉस एग्जामिन कैसे करोगे। सबसे बड़ा जो नहीं सिखाया जाता, लॉ कॉलेज में कोई बुक नहीं है, आज तक लॉयर्स को भी नहीं सिखाया जाता। दो चीजें होती है, लीगल नॉलेज, लीगल एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, किस तरीके से समझते हो, और नॉलेज है कि कितना पढ़ाई कर रखा है। मैंने क्या बोला अभी? नहीं, आपके आगे जो बैठे मैंने क्या बोला अभी? क्या कैसे क्या बोला, कैसे होगा? सुन लो यार, आप ही के लिए। मुझे इस लेक्चर से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल। मेरी तो इस कॉलेज की रिस्पेक्ट है। मैं यहाँ से गया हूँ तो मैं आया हूँ क्योंकि मैं कॉमन मिस्टेक देख रहा हूँ 11 साल से, तो मैंने को लगा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये डिस्कशन सिर्फ मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे यहाँ जूनियर्स आते हैं मैंने उनको भी ये करता हूँ। 1-1.5 घंटा बैठते हैं, जब मेरा एचआर की तरह मैं बिहेव करता हूँ, जब मैं उनको अपॉइंट करता हूँ 1-1.5 घंटा उन्हें समझाता हूँ और उनको बोल देता हूँ अगर इनमें से कोई भी चीज तो लैक कर रहा है तो चले जा, क्योंकि तेरे और मेरे टर्म्स नहीं अच्छे होंगे। तू हर बात पे डांट खाएगा, डांट पड़ेगी, तेरा ईगो थोड़े दिन में हट हो जाएगा, तू चला जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन वो बनाओ। हाँ, कहीं आप लॉ की नॉलेज कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, मैं गाइड करूंगा। बट आप प्योरली आप सीखने आ गए हो और मिस्टेक्स का पहाड़ बनाने वाले हो, तो हर मिस्टेक्स पे मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। और मेरे क्लाइंट अगर जुड़े हैं, जो मैंने कहा था डिससेटिस्फेक्शन रेट बढ़ेगा तो क्लाइंट जाएंगे मुझे प्रोफेशनल लॉस करेगा। तो तेरे को बुलाया है, अपॉइंट किया है, तो प्रोफेशनल गेन के लिए किया है ना। हम पेइंग की सैलरी से मैं चाहता हूँ ना तुम मेरे लिए अच्छा करो और अपने लिए भी अच्छा करो। तो इसलिए आप ही लोगों के लिए ये सेशन जो कॉमन मिस्टेक्स हम कर रहे हैं कई सालों से। तो रिसर्च एंड जजमेंट आर टू थिंग्स। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे आएगा? लीगल नॉलेज इज वन थिंग, उससे क्रॉस नहीं आएगा। जजमेंट पढ़ने से क्रॉस आएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कोई अगर मुझे फटाफट बता दे। पहले क्वेश्चन ये है कि पर्सन से उसको क्रॉस करना कि वो कितने लोगों ने कोर्ट में इंटर्नशिप की है? कौन से कोर्ट में करी थी? उत्तराखंड में। तो आप वहां तो क्रॉस सीख नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पहले लोअर कोर्ट से सीखना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक आएगा तभी तो पता होगा ना क्या क्रॉस क्या होता है, सबको पता होना चाहिए ये बात। अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं सेकंड ईयर हूँ, मैं थर्ड ईयर हूँ, आप सबको लॉ में आए हुए हो ना, आप लॉ के बच्चे हो, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पता। लॉ स्टूडेंट्स को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पता। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, सिविल और क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस है दैट बिकम्स क्रॉस एग्जामिनेशन। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन इफ रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब आप एविडेंस होने के बाद सवाल पूछते हो दूसरी पार्टी से, चाहे वो आपका पुलिस विटनेस हो सकता है, पब्लिक विटनेस हो सकता है, सिविल में प्लेंटिव हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है। तो क्रॉस इज द थिंग जहां आप दूसरे आदमी से सवाल पूछोगे, विटनेस से सवाल पूछोगे। तो सवाल क्या पूछोगे? अब दो चीजें आती है, लीगल नॉलेज कि लॉ की नॉलेज क्या है, कि भाई अगर उसने कोई लॉ गलत लिखा, जैसे मैंने अभी पूछा 3.5% वाला, मेरा पहला सवाल होगा तो आप ये 3.5% पे लोन देते हो, कितने लोगों को लोन दे रखा है आपने? अब उसने लिखा तो वो गलत बोलेगा भी, जी मैंने दिया नहीं, मैंने तो ब्याज पे नहीं दिया था इसको, मैंने तो फ्रेंडली लोन दिया था। तो मैं कहूँगा आपकी रीडिंग में तो लिखा हुआ दिया था। या फिर वो ये बोल सकते हैं हाँ फिर मैंने 5 साल तो वो दे रखा, तो फैटल उसका केस वैसे किया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1000 चीजें इसमें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, इसके लिए जजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। ठीक है ना, तो वो जजमेंट पढ़ने से आपको आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। आप लिख लो कि वी नीड टू बी वेरी गुड एट क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस इफ यू वांट टू बी अ लॉयर। जज के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो अलाउड नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे रीजन है, आप टीचर लोगों से पूछ सकते हैं, तो वो सवाल नहीं पूछ सकते। आप जज हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉयर आया वो क्या गलत पूछ रहा है आपकी कोर्ट में। ठीक है ना, तो क्रॉस एग्जामिनेशन पे आपको अच्छा होना पड़ेगा। पूरी हद तक आप लॉ कॉलेज में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं सीख पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। आज मैंने बता दिया, थोड़ा वर्किंग शुरू कर देना ताकि जब आप कोर्ट में जाओगे तो फिर आप थोड़ा सा एक ब्रॉडर आइडिया आपको रहेगा कि हम ये क्या हो रहा है कोर्ट में और क्या गलत पूछा जा रहा है। लीगल क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप पता लगा ही लोगे कि गलत पूछ रहे हैं। मैंने देखा, ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, मैं जब कोर्ट में गया तो मैंने देखा कि कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे लग रहा था गलत गलत पूछ रहे थे। वो लॉयर थे, किसी को 2 साल होंगे, किसी को 4 साल होंगे, मैंने कभी पूछा नहीं, बट जो मेरा लीगल एक्यूमेंट था मुझे लग रहा था ये गलत पूछ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं शेयर कर दूं, टाइम है सर आपको, करूं कि नहीं करूं? छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास एक केस आया 304A, बताओ मैंने फटाफट IPC 304A क्या है? नहीं बोला,
बात तो ऑनेस्ट आंसर ऑनेस्टली आंसर करना बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए। डेथ बाय कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। मेरे पास एक केस आया, गाड़ी से एक बंदे ने किसी को मार दिया और वो मेरे पास केस आ जाता है। मैंने फोन किया अपने पापा को भी किया, बाकी लॉयर्स को भी किया कि क्या डिफेंस लूं मैं। मैकेनिकल इंस्पेक्शन वगैरह होती है, जो गाड़ी से गाड़ी की टक्कर होती है ना, तो पेंट और कुछ चीजें मैच कर जाती हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पापा से पूछा, दिल्ली में जो मेरे को सीनियर बन गए थे दोस्त, उनसे पूछा कि क्या डिफेंस लूं, तो बोले कि मना कर दो, मैं नहीं चला रहा था गाड़ी, बस मना कर दो, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं था ही नहीं गाड़ी में, मेरी गाड़ी का नंबर है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, या फॉल्स इम्प्लीकेटेड है, मेरी गाड़ी तो थी नहीं यहाँ, मैं था ही नहीं यहाँ। तो मैंने ये पूछा, लेकिन ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसने मुझे लाइफ में बड़ा मोटिवेट कर दिया कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो मैंने सबसे पूछा और मैंने इसको डिसरिगार्ड कर दिया एडवाइस को। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं कुछ और डिफेंस लूंगा, मैं गलत नहीं था, मैं नेग्लिजेंट नहीं था। बिकॉज जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि मैं नेग्लिजेंट था, उसको ये नहीं प्रूव करना कि मेरी गाड़ी से कोई मरा है कि नहीं मरा। ठीक है, जो इसमें इंग्रेडिएंट सजा देने के लिए वो है कि मेरी नेग्लिजेंसी प्रूव करोगे आप, मैं गलत था। दो लोग थे, मैंने फाइल चेक की, उस फाइल में कोई विटनेस नहीं था, पब्लिक विटनेस। तो उस जगह पे दो लोग थे, एक मरने वाला और एक मरने वाला तो मर गया, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो मर गया वो गलत है। पुलिस की ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आ नहीं रही जो ये साबित कर दे कि मैं गलत था, जैसे मैं रॉन्ग साइड था, या सड़क के स्किड मार्क्स ऐसे बताते हैं, उस पे जजमेंट है स्किड मार्क्स पे कि स्किड मार्क्स ऐसे बता रहे हैं कि मैं गलत, वो तेज चल रहा था, या कुछ और फैक्ट्स ऐसे, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन जब विटनेस का शुरू किया तो पब्लिक विटनेस से पुलिस थी, पुलिस से पूछा कि आपने स्किड मार्क्स लिए, आपको किसने पब्लिक विटनेस ढूंढने की कोशिश की, बगल में दुकान थी उससे पूछने की, वो यही क्रॉस एग्जामिनेशन है, बगल में दुकान थी आपने उससे क्यों नहीं पूछा, so many questions like that। और फाइनली वी गॉट दैट एक्विटेड, हमें एक्विटल मिल गया उसमें, क्योंकि नेग्लिजेंसी प्रूव नहीं हुई। और मैंने डिफेंस विटनेस करा दी, जो एक और प्रैक्टिस है वो आप आगे समझोगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। उसमें डिफेंस विटनेस करवा दी अपने एक यूज की कि मैं गाड़ी चला के आ रहा था, वो गलत था, जो जिसकी डेथ हो गई। तो फाइनली एक्विटल हो गया, और ऐसे मैंने कहीं 20 से 25 एक्विटल अपनी से करा दिए। तो एक्विटल होने के बाद एक बार रमेश गुप्ता, जैसे आज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, एडवोकेट रमेश गुप्ता, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, वो आए थे द्वारका कोर्ट ऐसे ही एक स्टेशन लेने। तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में बात की, और उन्होंने कई सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में बात की, और एक एग्जांपल उन्होंने ये दिया कि जो डेथ, ये जो नेग्लिजेंस के केसेस हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें आप पहला डिफेंस ले लेते हो कि जी मैं तो था ही, and there and then you lose everything। now the prosecution only needs to prove कि आप थे, और वो हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा कि एक तो गाड़ी आपका मतलब बड़ा ना, एक प्रिजम्पशन भी चलती है, गाड़ी आपकी क्यों फंसा रहा है कोई, आपके मोबाइल लोकेशन में पुलिस क्या निकाल सकती है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन में आपकी डेंटिंग आ रखी है, कई सारी चीजें जो इस तरीके की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है। तो प्रोसिक्यूशन को अब कैसे होगा वो उसके और ब्रॉडर है। प्रोसिक्यूशन को अब सिर्फ यही साबित करना है आप थे, तो साबित नहीं करना। अब आपने कहा कि मैं नहीं था, और जब ये साबित हो गया आप थे, तो आप कह नहीं वो गलत था, कैसे कह सकते हो आप? किसी को लॉजिक समझ आया? आपने अभी थोड़ी देर बाद बोला था आजाद ट्रायल चल रहा था, मैं नहीं था जी, अभी साबित हो गया आप थे, मान लेते हैं, अब कह रहे हो गलत तो वो था, तो आप ये कैसे कह रहे हो? जो रमेश सर ने बोला कि आप तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी डिफेंस एक साथ दे रहे हो, पहला डिफेंस में था ही, दूसरा कह रहा वो गलत था। नॉलेज, ये नॉलेज कैसे हुई आपको कि वो गलत था? वो नॉलेज तो तभी होगी ना जब आप उस स्पॉट पे थे। तो उन्होंने कहा आप जी अगर आंटी हमने यू आर सच में आप वहां पर नहीं थे, झूठे फंसे हुए हो, या कोई और बहुत ही बड़ा एंगल, बड़ा ही पॉइंट आपके पास है, तब तक आप ये डिफेंस ना लें, आप ये डिफेंस देंगे आप नेग्लिजेंट नहीं थे। तो उस दिन मैंने एक राहत की सांस, कहते हैं टोटल मेरा शायद तब तक नहीं हुआ होगा, तभी ली होगी सांस, मैंने एक राहत की सांस ली कि मैं बहुत सही जा रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने 20 से 25 ऐसे एक्सीडेंट के केसेस में एक्विटल कराया इन्हीं पॉइंट्स पे कि मैं नेग्लिजेंट नहीं था। क्योंकि पुलिस का एक कभी हम पुलिस ट्रेनिंग में भी जाते हैं, मेरा दोस्त हालांकि मैं अभी तक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं साथ गया, पुलिस को भी ये जो लीगल सेशन देते हैं उसमें भी ये सेशन देना चाहिए पुलिस को, कि ये पुलिस भी ना ले, क्योंकि ऐसा नहीं, अल्टीमेटली हम समाज का हिस्सा है, अगर किसी ने गलत किया तो उसको पनिश भी होना चाहिए। अपनी अपनी एडवोकेट ड्यूटी हम निभा रहे हैं, वो एक अलग बात है, प्योरली और लीगल मैरिट। तो पुलिस को भी होना चाहिए कि उन फैक्ट्स को साबित करे कि वो नेग्लिजेंट। पुलिस डेथ साबित करती है अपनी चार्जशीट, ये जो मिस्टेक पुलिस कर रही है आज कि आप डेथ साबित कर रहे हो, नेग्लिजेंस की केस में डेथ नहीं साबित करनी, नेग्लिजेंस साबित करनी होती है। तो एज ए लॉयर आपके लिए एडवांटेज अभी तो है जब तक पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो
तो पॉइंट ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन कहीं सिखाया नहीं जाएगा। लॉ की अच्छी नॉलेज होगी, अब आपने जजमेंट पढ़ रखा होगा, एक जजमेंट है इसी तरीके हर नेग्लिजेंस के केस में आपको 80% केसेस में आपको 100% कन्विक्शन तो हो रहा है। क्या लिखा जाता है सर, अगर आपने कोई जजमेंट पढ़ा हुआ तेज रफ्तार से आ रहा है, यही लिखा होता है। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है तेज रफ्तार क्या है। मेरे को गाड़ी चलानी आती है पिछले 20 साल से, मेरे लिए तेज रफ्तार है 100, एक बंदे ने गाड़ी कल सीखी उसके लिए तेज रफ्तार 40 है। तो तेज रफ्तार रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव शब्द की तुम्हारे लिए कुछ है मेरे लिए कुछ और होता है, तो इस पे जजमेंट है। तो आपको ये जजमेंट पढ़ा होगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप सेंटर पे करते हो। मान लो एग्जांपल देते हैं, अब क्रॉस किया क्या जाता है वो जरूर बताना अगर एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं। आपके चार्जशीट में लिखा है कि एक्यूज तेज रफ्तार से आ रहा था और उसने इसको मार दिया, नेग्लिजेंसी हो गई। अब वो आता है क्रॉस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन चीफ में बोलता है कि वो 80 की स्पीड से आ रहा था और स्पीड लिमिट 60 थी, तो अब क्या क्रॉस करोगे? अगर कोई मुझे बताए जल्दी क्या सवाल पूछोगे? आप ये सवाल पूछोगे कि जो आपने चार्जशीट प्रिपेयर की पुलिस साहब या फिर विटनेस था उस वक्त, मान लो पुलिस विटनेस था या विटनेस इंडिपेंडेंट है जिसकी स्टेटमेंट है, तब तो आपने तेज रफ्तार लिखा था, तो आपने अपने पिछले स्टेटमेंट में जो पुलिस जो स्टेटमेंट देती है वो 161 में होती है, अगर सीआरपीसी के ठीक से पढ़ी हो तो 161 के स्टेटमेंट में तो आपने तेज रफ्तार बोला था। तो आपने उस वक्त पुलिस को तो 80 की स्पीड नहीं बताई, और अब जो आप 80 की आज कोर्ट में आके बता रहे हो ये पुलिस ने ये जैसे भी आपको ट्विटर कर दिया है और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। आप पिछले स्टेटमेंट से कन्फ्रंट करा दोगे, और ये कन्फ्रंटेशन वर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन किस पे करना है किस पे नहीं करना है ये जजमेंट में लिखा होता है। जब अक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है, अगर आप कंप्लेनेंट साइड से, दूसरा पहलू भी है, अपनी कंप्लेंट क्लाइंट की कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप लिखवाओगे इसमें लिख कि कितनी स्पीड होगी, वो कहेगा हाँ यार इसकी स्पीड तो 100 से ज्यादा होगी, तो लिखो इसकी स्पीड 100 के आसपास होगी, ठीक है ना। तो जब आप कंप्लेनेंट साइड से ड्राफ्ट करोगे, जब एक्यूज साइड से डिफेंस में आओगे, तो आपको ये सब फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो आप उन जजमेंट्स को ठीक से पढ़े। इसके बाद है कोई भी टॉपिक जब आता है, कोई भी केस या कोई भी टॉपिक, उसके आसपास का सारा लॉ आपको बताना चाहिए। 11 महीने का एग्रीमेंट कौन क्यों करते हैं, कितने लोग बताते हैं? ये तो पता है 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, पता है किसको पता है? जनरली जो हम मार्केट में एग्रीमेंट करते हैं 11 महीने के करते हैं। क्यों करते हैं 11 महीने के? वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मार्केट में जो हम करते हैं 11 महीने का इसलिए करते हैं कि सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सेक्शन 17 ही है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी टू गेट द अग्रीमेंट रजिस्टर्ड अगर वो 1 साल का है या उससे ज्यादा है। तो अगर आपने एक लॉ बनाया, अब आपने एक सूट फाइल किया जिसमें आपने लिख दी थी टेनेंसी थी मेरी 2 साल की और अग्रीमेंट लगा दिया अनरजिस्टर्ड, देन योर डॉक्यूमेंट इज ऑफ नो यूज। It may be relevant, वही admissible apply में पड़ा हुआ है, admissible नहीं है because contrary to law है। तो ये जब एक केस आप तैयार करते हो तो 100 चीजें उसके अलाउंड रिवॉल्व कर रही है, सारे सेक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको अगेन ये लॉ अब आप कैसे जानोगे, किस तरह में बात कैसे जानो? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट तो कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको कहा था कि कॉलेज के सिलेबस से बहुत ज्यादा पढ़ना है, जो मैंने कहा था कि अलग नहीं है, ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 10 एक्ट है मेनली जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 10 एक्ट नहीं, 30 होते हैं। कितने एक्ट है 3 साल वाले में? कितने एक्ट करके होता है? पहले साल में 29 एक्ट, 29 के आसपास है। 29 28 एक्ट्स को हम पढ़ के उसमें एक्ट कुछ एक्ट नहीं है, टॉर्ट में कोई एक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे एक्ट है, ठीक है। तो कहीं के हैं कहीं के नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस का कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम 25 या 20-22 एक्ट पढ़ के हम कोर्ट पहुंच जाते हैं, 112-13 कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जब आप जजमेंट्स पढ़ोगे तो और चीजें निकल के आ जाएंगी, ये भी कोई एक्ट है, ठीक है ना। खासकर इसमें इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एक एक्ट है जो आपको हर जगह अप्लाई हो जाता है। ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जितना डिस्कशन हमने किया है वो ऑनेस्टली आज आप अप्लाई करें, ठीक है, और चीजों को टेक्निकल लेवल पे पढ़ें। अब सर एक बेरेट मैंने लिया था, किसको मैंने बोला था? वो पूछेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपसे पूछा था ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपसे बोला था ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसने आंसर दिया था? चलो यश आप बताओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक पॉलिसी को हो सकते हैं या सोसाइटी एंड वॉइड अग्रीमेंट, एंड वॉइड अग्रीमेंट
बैकग्राउंड कंडीशन पर आगे कैसे क्या सिलेक्शन होती है इन चीज़ों में? बताओ भाई, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सही डिफरेंस होता है। तो मैं समझ रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल, जो मैंने बात की टेक्निकल लेवल पे चीजों को पढ़ना सीखे। मैंने इस सेशन का स्टार्ट ये किया था कि लॉ तो बहुत वास्ट है, अगली बार किसी टॉपिक के साथ भी आ सकते हैं। अगर आप कभी कहेंगे और सर कहेंगे कि कोई टॉपिक सर क्यों उठा के डिस्कस करो, उस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरा। लेकिन आज का जो सेशन पर्पजली कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं और किस तरीके नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो है। तो उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जरूरी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया और आधे से ज्यादा बच्चों ने 60 मार्क्स लाए होंगे उसमें, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस नहीं पता हमें 120 में। तो आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिए कि हम ठीक से पढ़ रहे हैं। 120 स्टूडेंट्स हियर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस बताना। कोई नहीं बता सकता? चलो पहले एक करके देखते हैं। वॉइड एग्रीमेंट बताओ। सर एग्रीमेंट में लॉ के अकॉर्डिंग उसकी शर्तें ना हो, सेक्शन 10 की कंप्लायंस ना हो, और ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सर ये बोल सकते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट को कर बट पॉसिबल ही ना करा पाए उसके साथ। मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये एक टॉपिक पढ़ाने का पर्पस नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है हमारे लॉ का। पर्पस ये है कि हर सेक्शन जितने आप पढ़ रहे हो वो इसी टेक्निकलिटी से आपको पढ़ने हैं। अभी एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं इसके बाद। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, जो होता है सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट ही होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, अब आपको समझना है। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यही पढ़ा ना। तो हम जो कर रहे हैं वो सब हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, जो पेपर डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम अग्रीमेंट कर रहे हैं। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप वही हमें सट्टे वाला, और मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, आप जीत गए और सब कुछ हो गया, हम घर चले गए। तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये जो अग्रीमेंट था ये इन्फोर्सेबल ही नहीं था, लेकिन कोई ब्रीच ही नहीं हुआ। अब ब्रीच नहीं हुआ तो पता ही नहीं चला कि हम वॉइड एग्रीमेंट कर रहे थे। अगर ये ब्रीच होगा, आप कोर्ट जाओगे कि यार पीयूष सर ने सट्टा लगाया था, 1 लाख रुपए हार गए, मुझे दे नहीं रहे, तो कोर्ट कहेगी कि वी आर नॉट इन्फोर्सिंग इट, हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये इलीगल है, अनलॉफुल है, तो हम इसको इन्फोर्स नहीं करते। तो इन्फोर्स नहीं किया तो वो वॉइड एग्रीमेंट रह गया या वॉइडेबल रह गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसके अलग है एंगल। तो इन्फोर्सेबिलिटी जब हुई नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है सिर्फ। आप दोबारा पूछ सकते हो अगर ये ज्यादा टेक्निकल जा रहा हो कि अग्रीमेंट किया और वो वैलिड नहीं था, और वैलिड नहीं था इसलिए वो वॉइड रह गया, और वॉइड एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और अगर इन्फोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो देयर इज नो नीड टू प्रीफिक्स वॉइड और वैलिड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। वो है या वो नहीं है। एक आदमी जिंदा है मर गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है अगर हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या तो है नहीं या वो है। तो अगर इन्फोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अगर वो इन्फोर्स नहीं हुआ तो वो वॉइड की किसी भी सिचुएशन में रह गया वहां पर, ठीक है। तो वॉइडेबल हो सकता है, वो अलग, उसका अलग है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा ही नहीं। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ठीक से पढ़ा हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा ही नहीं, बताओ कहीं लिखा है? लेकिन वॉइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कहीं, वो कहां लिखा है बताओ? नहीं, वॉइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब किसी एक लाइन में वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, वो कहां आ रहे हैं? नहीं। 2J कहता है कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड। 2J ये कहता है ना, अभी लैंग्वेज को क्लियर कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस का मीनिंग क्या होता है? रुक जाना, जो पहले था अब नहीं है ना। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void. फ्यूचर कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कंटीजेंसी क्या आती है? आपने एक कोई बैंक्वेट लिया और बैंक्वेट में था आपका 200 लोगों का फंक्शन, और उसके बाद कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने कह दिया 50 आदमी से ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी या फंक्शन होगा ही नहीं कह दिया, और आपने वो कहते हैं ना लॉ डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, उसमें वो सीज हो गया अभी फिलहाल। तो
कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड था, क्या कहना चाहिए, कोई अग्रीमेंट जो इनिशियली वैलिड था और वो कॉन्ट्रैक्ट था और बाद में वो सीज हो गया किसी कंटीजेंसी की वजह से, तो वो सीज इज टू बी इन्फोर्सेबल। ठीक है, जैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो लोग हैं जो आधे से ज्यादा दुनिया है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रही है, और मैंने कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ी हैं जिसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, तो बुक्स अच्छे ऑथर्स की पढ़े हैं हमेशा। ठीक है, जनरल वर्नल जो भी रिकमेंडेड सर लोग बताते हैं वो ऑथर प्रूवन है और उन्हीं के पढ़े। बहुत सारी बुक्स मार्केट में कई बार अवेलेबल होती हैं, वो गलत लिखा होता है। और ये 20 क्वेश्चन में देखा है मैंने डिफरेंस वॉइड अग्रीमेंट ऐसे और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। चलो एक बच्चा पढ़ रहा था, नहीं तू पढ़ी तो तेरा तो मास्टर ही गलत है, तू क्या सीखेगा? तेरी 20 क्वेश्चन का कोई कौन होगा ऑथर 20 क्वेश्चन का? सीएलए का कोई, जो सीएलए पब्लिकेशन है उनका कोई छोटा मोटा ड्राफ्ट कर रहा है 20 क्वेश्चन पिछले बार देख के। तो हर, ये बहुत छोटा एग्जांपल था, हर लॉ के टॉपिक को आपको इसी तरीके पढ़ना है, एक एक सेक्शन। और जिन्होंने 3 साल गवा दिए अब वो सोचे और स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरीके से ये पूरा होने वाला है। मतलब आप अब 3 साल जो गवा चुके हैं और इतने सारे सेक्शन जा चुके हैं, उनको किस तरीके पढ़ना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है मुझे, ठीक है ना, वो चीज आप बना लो एक, और उसको सारे सेक्शन को एक बार फटाफट रिवाइज करना शुरू कर दो। इसके बाद आईपीसी 378 डाउनलोड करो सब लोग अपने मोबाइल में। 378 आईपीसी क्या है? 378 डाउनलोड किया बताओ। मेरे पास अच्छा एक आईपैड है, बहुत बढ़िया, और somebody enters my room and he sees that मोबाइल iPad is very good, बहुत अच्छा है, and he with that dishonest intention उसको टेस्ट को ले गया आज, and he picks it up from a particular space जहाँ भी वो रखा था, और उसके बाद वो उसको वहाँ से बाहर ले जाता, मेरा ऑफिस बड़ा है, बाहर रख देता, लेकिन बाहर मेरी टीम अवेलेबल थी और वो टीम ने देखा सिचुएशन बनी कि वो ले जा नहीं पाया और उसने उसको बाहर रख दिया। मेरे क्लर्क ने उठाया, वापस मेरे टेबल पे रख दिया उस आईपैड को। तो इनिशियली जो मिस्टर एक्स थे जो ये सब कर रहे थे, उन्होंने क्या ऑफेंस कमिट किया? अटेम्प्ट टू थेफ्ट और नो ऑफेंस। कैसे कहते हैं आप? आप पास आप बताओ किस एक वर्ड को आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो सेक्शन में? सर उसका जो इंटेंशन था उसे फुलफिल कर लिया था। कैसे? तो उसे देखे तो हो गया नहीं। हाँ सर, सब एक्सपर्ट हो गए। आईपीसी कौन पढ़ा रहा है? तो वो जो इंग्रेडिएंट है, यही हर सेक्शन की इंग्रेडिएंट को ये समझाने के लिए सबसे इजी सेक्शन है। वो जो इंग्रेडिएंट है वहाँ मूव्स है। आधे से ज्यादा दुनिया टेक अवे पे है कि टेक अवे तो इन ऑर्डर टू टेक अवे, इन ऑर्डर ले जाने के लिए मंशा से मूव कर दिया, ले जाना तो कहीं है ही नहीं। तो अगर आपने इसको मूव कर दिया है, ये आप सेटिस्फाइड कि आईपीसी आप लोग कभी आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं कि आईपीसी टेक्निकल लेवल पे पढ़ाया जाए, तो इस टेक्निकलिटी से सारे सेक्शन हमें पढ़ने हैं, चाहे वो सिविल के हो, कॉन्ट्रैक्ट के हो, चाहे आईपीसी के बाकी सेक्शन। ठीक है, इसी तरीके का डिफरेंसेस चेन स्नैचिंग जो 356, 357, थेफ्ट, रॉबरी उसमें भी है कि फोर्स यूज हुई, कन्फाइनमेंट कहीं पर हुई, कहीं पर फोर्स हुई, कहीं पर हर्ट हुआ, तो एक ही मान लो गले से चेन खींची तो वो रॉबरी बन गया, मुझे चोट लग गई तो रॉबरी के डेफिनेशन में आ गए थे। ठीक है ना, अगर मैं कन्फाइन करके किसी को करता हूँ 356 बन जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग ऑफेंसेस हैं कि कौन सा ऑफेंस बनेगा। अगर आप क्रिमिनल लॉयर हो तो ये जब आर्ग्यूमेंट होती है, चार्ज के टाइम पे आर्ग्यूमेंट होती है। चार्ज इज द फर्स्ट स्टेज जहां पर एक केस शुरू होता है। चार्ज, डिस्चार्ज एंड एक्विटल में डिफरेंस बताओ मुझे ना, बस हम इसको रैप अप कर रहे हैं, मेरे पास कुछ और है नहीं, ये तो टॉपिक पे टॉपिक आ रहे हैं। डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस है? चार्ज तो जो होता है चार्जशीट में उन्होंने लगाई एसएससी है। हाँ। डिस्चार्ज वो है जो जज साहब करते हैं उसके बेस पे कि हाँ ये दोनों मैं आपको बताया था, दोनों जज साहब करते हैं। आप बताओ। जी, तो
करते हुए हैं। नहीं मैंने डिस्चार्ज और एक्यूटल में सर डिस्चार्ज मींस चार्ज लोगों ने हटा दिया उनके ऊपर से, एक्यूटल मतलब कि उनको 2 मिनट कर दिया। क्या पता है? हिंदी तो मुझे ही पता है सर उनको बाइचांस बंद कर दिया और एक ही केवल चार्ज हटा रहे। तो डिफरेंस क्या है? सर जरूरी सारे चार्ज मिले। आप बहुत क्लोज हो लेकिन शायद बता नहीं पा रहे हो डिफरेंस क्या है? सर एक बार तो 2 मिनट पूरी तरह से उनको कर दिया भाई जब चोरी कर दिया। डिस्चार्ज दोष मुक्ति है नहीं सर उसमें कोई जरूरी सारे इफेक्ट से नहीं, सारे डिस्चार्ज होते हैं, सारे ऑप्शन से डिस्चार्ज। एक केस है देखो तो एक ही सेक्शन है, 302 में था डिस्चार्ज, 302 में एक्यूटल, और तो सेक्शन नहीं था। आप बताओ कोई बताओ यार। एक्यूटल जो है वो पूरी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद चल रहा था, वो डिस्चार्ज को भी उस दौरान जब मुझे लगा होगा स्टार्टिंग में तभी। वेरी गुड। अगर चार्जशीट फाइल हुई, आपने चार्ज पे आर्ग्यू किया, ऑफेंस नहीं बनता, डिस्चार्ज इमीडिएटली। पूरी एविडेंस होने के बाद अगर इसको छोड़ा जाता है, आपका भी था, आप बता नहीं पा रहे थे, पूरा एविडेंस हो गया, क्रॉस एग्जामिन हो गया, सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस डिफेंस करानी है नहीं कराए, बोलने के बाद जो होगा वो एक्यूटल होगा। ठीक है, ये एक्सपर्ट डिफरेंस है। तो पॉइंट अब ये है कि कौन कौन इंप्लीमेंट करने वाला है। कितने लोग इंप्लीमेंट करेंगे सीरियसली? एक बंदा है। जितनी बातें हमने डिस्कस की, कितने लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में? इसमें तो यार नहीं उठा दो फटाफट, करना नहीं करना। इसमें भी जो लोग सोच रहे हैं ना, वो चिंता का विषय है। कौन अभी नहीं पूछूंगा, अभी कुछ नहीं पूछूंगा। एक बार क्या होता है कि देखो, अगर पूरा याद है तो मैं सुनाता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ, अगर याद आएगा मैं बताता हूँ। एक मिनट आप सुन लो, इससे रिलेटेड है। मुझे अगर वो पूरा किस्सा याद आएगा तो मैं सुना दूँ, मुझे पता नहीं बोलते हुए पता लगेगा कि याद है कि नहीं। एक बार एक चिड़िया को पकड़ लेता है आदमी, तो चिड़िया उसे बोलती है कि मैं ना, मुझे जाने दो, मैं आपको ना 3 एडवाइस दूंगी बहुत ज्यादा अच्छी, अगर तुम मुझे जाने दो, अगर छोड़ दो तो बंदा फिर कन्विंस हो जाता है, उसको छोड़ देता है चिड़िया को। तो पहली एडवाइस उसको वो देती है कि कभी भी ना जो छूट गया पीछे, रिग्रेट मत करना जरूरत से ज्यादा। ठीक है, रियलाइज कर लेना मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझे इस पे आगे काम करना है, लेकिन टॉर्मेंट योरसेल्फ, अपने आप को कोसना ये मत करना कभी लाइफ में। जो गया वो गया, तो वो उसको छोड़कर वो थोड़ी और ऊपर चली जाती है। उसके बाद कहती है, दूसरी एडवाइस मेरी ये है, दूसरी एडवाइस की मेरी बात है, एनीवेज उसके बाद मैं 3 एडवाइस देती है, वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस देनी थी। एनीवेज वो ऊपर जाके उसको बोलते हैं कि मेरे पेट में ना ज्वेल्स हैं बहुत सारे ना, बहुत सारे अच्छे। हाँ, दूसरी एडवाइस ये थी, कभी भी ऐसी चीज को बिलीव मत करना जो लॉजिक के अगेंस्ट हो। तो ये 2 पीसेस ऑफ एडवाइस ने दी थी। पहले एडवाइस क्या थी? एक नाम जो चीज छूट गई है उसमें बहुत ज्यादा रिग्रेट, टॉर्मेंट योरसेल्फ कहते हैं ना, आप उसे उसी में डूब गए हो, यार ये कैसे हो गया। मान लो कोई बच्चे सच में अगर मान लेगा मेरे यार 2 साल मैंने वेस्ट कर दिए, ये बात मुझे पहले पता लगती, इस तरीके पढ़ लेता, उस तरीके पढ़ लेता, ठीक है, ये थोड़ी देर 2 घंटा होगा, फिर होगा मैं कर रहा था ठीक ही कर रहा था। लेकिन जो वो पुराने वाले फेज में वापस जाएंगे वो सच में कुछ कर जाएंगे। तो पहली चीज कि अपने आप को बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं करना। दूसरा, कोई चीज अगेंस्ट लॉजिक हो तो उसको मानना मत। ये 2 बात बताने के बाद वो कहती है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे पेट में 2 डायमंड है और जिनकी वैल्यू मतलब तो है बहुत मिलियंस है, तुमने मुझे छोड़ कैसे दिया? तो वो बंदा होता है तो अपना सिर पकड़ लेता है लिटरली और बैठ जाता है, हाउ कुड आई यार, मैं कैसे कर दिया, मैंने ये छोड़ कैसे दिया तुझे, करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता मैं। तो फिर उसके बाद उठता है, कहता है एनीवेज गिव मी थर्ड एडवाइस। कहती है व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन थर्ड एडवाइस, यू हैव ऑलरेडी डिसरिगार्डेड माय 2 एडवाइसेस। पहली एडवाइस मैंने आपको कहा कि आप रिग्रेट मत करना, आप तो रो रहे सड़क पे गिर गए। दूसरी एडवाइस मैंने आपको दी कि लॉजिक के अगेंस्ट कोई चीज तो मानना मत। तो यू हैव ऑलरेडी डिसरिगार्डेड माय 2 एडवाइसेस ऑलरेडी आई हैव गिवन, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन थर्ड एडवाइस। एनीवेज मैं फिर भी वो एडवाइस आपको भी दे देता हूँ। वो थर्ड एडवाइस ये थी कि जो है जिंदगी में, पहले नॉलेज हो या कुछ हो, पहले उसको यूज करना अपनी जिंदगी
आप सीखें। हम लोग चाहते हैं और आ जाए, बुक्स भी आ जाए, हर साल की बुक्स आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, सॉफ्टवेयर आ जाए, लेकिन जो इतना सब है ना यूज नहीं होता। तो जो भी आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया या जो ऑलरेडी आपके पास है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करें और उसके बाद फिर और लेने की कोशिश करें। ठीक है, ये लोग सब लोग आपको अप्लाई करना है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।